Yes, Ashish, you can start. Yeah, good evening, everyone. I welcome you all on behalf of Lazarus Dias Education Academy, and we'll start with the prayer. So you can say along with me, Lord, grant me the courage Lord, grant me the courage to change the things I can to change the things I can and ought to be changed, and ought to be changed, the serenity to accept can't, the serenity to accept the things I can't, and the wisdom to know the difference. and the wisdom to know the difference. Right. Amen. Amen. So, friends, I will briefly introduce our academy to you. We have been in training for last now more than 14 years, and we have been on the panel of LIC. We have done direct marketing training for LIC for last 3 years. Our mission is to we create predictable success in business and happiness in the life for providing innovative tools and systems to effective outcome. Our vision is to be world the best performance management company in the world. So our core values are that we give cost effective solutions. We believe in integrity, customer focus, ethical, and relationship is important before revenue. So currently the most important challenges we feel our industry is facing is the high attrition in our agency force, misplaced focus, missing in activity management, lack of innovative sales tools which we provide, and short-term business goals are more in focus and long-term is missing, and recruitment is the key factor which is important, and mission is important and not commission. So our value proposition is that it should benefit the mindset of the people, monitoring of our weekly activity, which is I think the only company in India which we are doing. We want to improve the sales ratio of our agency and give them some very interesting innovative tools like apps, FR app, which you all are knowing, and we will be supporting you for full 1 year to see that you improve your performance. So Lazarus Dias sir, I'll just briefly tell you that Lazarus Dias sir is popularly known as someone who is a MDRT guru. He has done his MBA and he's a certified coach also. And apart from that, his professional journey, he is himself a business advisor for last so many years. He has done, he was a branch head of Birla Sun Life, and he had done 3,000 recruitments in 3 months, which is a record in Birla Sun Life. And apart from that, he continuously keeps on upgrading himself with whatever academic requirement is there. And Lazarus sir is one of the few persons you can say in the industry who has written 4 books. These 4 books are Objection Overruled and Family Welfare Economics, LDA Success System, and Funding Responsibilities. And we must have sold physical more than 12,000 copies of these books altogether. So the projects and clients which we must have handled in last few years, we have done IDBI Federal extensive training of IDBI Federal across the country, where we used to train their advisors, their trainers, their branch head, their agency managers. LIC, we have done regularly training. We are on their panel for Chairman Club training program. And Lazarus sir does training for SBI Life also regularly.
and Agon Life we have done regularly, and other few private companies we have done regularly a lot of work like Kotak Life. So this was a brief introduction of our company, and Lazarus sir himself has been an you can say MDRT for 6 continuous years. And over to you, Lazarus sir. So this full year, our team, myself, Lazarus sir, and Neelam, our relationship manager, and our office support, Sonal, we all will be there you in this journey to see that you achieve very good performance. It's going to be a full year program, 45 sessions every week we'll be meeting. So thank you very much, and I welcome you all on behalf of our academy. My name is Ashish Banjara. So over to you, Lazarus sir. Yeah. So we have 3 guest of honors today. So we would like to start with Akhilesh Yadav. So Akhilesh Yadav is the participant, मतलब वो हमारे first batch के participants है, young dynamic leader है. तो मैं चाहूँगा कि अखिलेश जी आप unmute करके अपना वीडियो शुरू कर लीजिए. And we would like him to say a few words before we start today's session. Akhilesh? Give me a minute, sir. Give me a minute. Yes. After that, we'll have. After that, I'll be calling upon Sharad More and then Nitin Dage to speak on this occasion. Sharad, if you are ready, then you can start. Sharad More. Yes, sir. Yeah. Good evening, friends. Myself Sharad More. मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मुंबई में डेवलपमेंट अफसर हूँ. मुझे LIC में करीबन 14 ईयर हो गए और लास्ट 2 साल से नहीं बोल सकता हूँ. मैं लाजरस सर को 2008 से जानता हूँ. इनका इंट्रोडक्शन मेरे एक एजेंट ने करवा के दिया था और मैं लाजरस सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इनकी वजह से मैं मिस्टर LT मूलचंदानी जो भरत पारेख जी के DO थे उनसे मिला था और उन्हीं की राजस सर की वजह से मैं भरत पारेख जी को भी मिला था. तब वो ये करते थे कर्नाटका संघ माटुंगा मुंबई में ट्रेनिंग के सेशन लेते थे और सुबह 9 बजे स्टार्ट होते थे. तो 9 से लेके 11 बजे तक उनका ट्रेनिंग अच्छा रहता था. तब से मैं जानता हूँ और तब से उनके कुछ आइडियाज आज भी मैं फॉलो करता हूँ जिन्होंने मुझे सिखाई थी. और उनका लास्ट ईयर लॉकडाउन में ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ इसका रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग और मेरा रिक्रूटमेंट तो अच्छा था लेकिन उतना एक्टिव नहीं था. टर्मिनेशन बहुत ज्यादा था. तो सर के ट्रेनिंग प्रोग्राम आया और मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया. मैंने सिर्फ सिलेबस देख के ज्वाइन किया था. मुझे ट्रेनिंग में क्या होने वाला है वो मुझे पता नहीं था लेकिन मैं ट्रेनिंग ज्वाइन किया सिलेबस देख के और उसका सिलेबस देख के मैंने ज्वाइन किया तो मुझे उसका बहुत फायदा हुआ. मैंने पूरे साल में इतने प्रॉब्लम होते हुए 34 एजेंट रिक्रूटमेंट किए थे. पूरे ईयर में मैंने 34 एजेंट इससे पहले कभी रिक्रूटमेंट नहीं किए थे. बल्कि मुंबई तो पूरे आधा साल तो पूरा लॉकडाउन था. बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो था. एग्जाम सेंटर में डेट नहीं मिल रही थी. तभी भी मेरे 34 एजेंट मैंने पूरे लॉकडाउन में रिक्रूटमेंट किए थे. ये ट्रेनिंग अगर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट आप ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन हुए तो मेरा यही है कि यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है. जो मसाला होता है वो नहीं होता है. यहाँ पे सिस्टम क्रिएट की गई है. एक सिस्टम है जो आपको है ना आपके हैबिट चेंज करवाती है. धीरे धीरे हैबिट चेंज करवाती है और आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हो तो आप में एक अलग सा बदलाव आ जाता है और उस बदलाव से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि आप रिक्रूटमेंट प्रॉपरली कर पाओगे. प्रॉपरली रिक्रूटमेंट करना है वो सब चीजें धीरे धीरे आप में आ जाती है जो मेरे में आई है. उससे पहले मैं कभी 10 से भी ज्यादा एक साल में कभी रिक्रूटमेंट नहीं किए थे. एक ही दिन मेरे 6 एजेंट पास होते थे. हाँ, उससे पहले मैंने कभी ये नहीं किया था. सिर्फ इस ट्रेनिंग की वजह से मैंने ये किया है. तो और इस ट्रेनिंग में आपको है ना आपका एजेंट कैसा हो उसका सिग्नेचर एनालिसिस से यहाँ पे ग्राफोलॉजी भी सिखाई गई हमें. जो सिग्नेचर एनालिसिस, हैंड राइटिंग एनालिसिस, हाँ
इसमें सबसे बड़ा मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जो जिसके लिए मैं सर को थैंक यू बोलूंगा, कि हमारे पहले बैच में 60 लोग थे, 60 ऑल ओवर इंडिया के। 60 में के 60 हमारे अच्छे फ्रेंड है। वो अपने आइडियाज पूरे हिंदुस्तान के शेयर करते हैं, बल्कि रेफरेंस शेयर करते हैं कि अरे मेरे एक बंदे को एजेंट बनना है मुंबई में, उसको एजेंट बना दे, तेरे टीम में ऐड कर दे। ओके। और मास्टरमाइंड ग्रुप इस ट्रेनिंग सेशन का सबसे अच्छा पार्ट है, कि जो मास्टरमाइंड ट्रेनिंग होता है, जिस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग में हम जो सेशन होता है हमारा सर का ट्रेनिंग का, वो मास्टरमाइंड ग्रुप में डिस्कस करते हैं। जो असाइनमेंट दिया होता है वो डिस्कस करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे असाइनमेंट अच्छी होती है, थोड़ी टफ भी होती है, अगर उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाए ना, तो आपका रिक्रूटमेंट बहुत स्ट्रांग रहेगा, अच्छा रहेगा, और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यही मैं बोलूंगा। और एक एडिशनल मैं बताना चाहूंगा कि पूरे लॉकडाउन में लास्ट ईयर मेरे पुराने एजेंटों ने ना के बराबर बिजनेस किया, कुछ एक दो छोड़ दिया जाए तो ना के बराबर। जितने भी मैंने 34 नए एजेंट रिक्रूटमेंट किए, उन्हीं की वजह से मैं बच पाया, न तो मेरी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी, बहुत, यानी कि आउट ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि मैंने नए रिक्रूटमेंट किया, उन्होंने अच्छा बिजनेस किया, और पुराने एजेंटों ने, हमारे पुराने एजेंटों ने काम नहीं किया, नए एजेंटों की वजह से और लाजरस का ट्रेनिंग की वजह से ये किया। और एक एडिशनल बोलूंगा, जो भी ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, वो जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन आपका एक फोटो निकाल के रखो। एग्जैक्ट 1 साल के बाद उसी फोटो और दूसरा फोटो निकालो, आप दोनों फोटो में एक छोटा सा आपको चेंज दिखेगा, आपके प्रति कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, कि आपके प्रति आपका फोटो में कॉन्फिडेंस झलक आएगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको आगे रिक्रूटमेंट, बिजनेस और एजेंट कैसे रिटेंशन करे, एजेंट कैसे टर्मिनेट ना हो, वो आपको अच्छा सा एक ये मिलेगा। यही मैं आपको बोलना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सर। Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. और किसी को कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं मेरे Yeah, yeah. It is शरद जी, 34, एक जन 34 का agents. क्वेश्चन आया है कि 34 एजेंट्स हैव यू रिक्रूटेड इन वन फाइनेंशियल ईयर? या 1 फाइनेंशियल ईयर आई हैव द 50 यूआरएन, मेरे पास 50 यूआरएन थे, जिसमें से मैं 34 ही एग्जाम ले पाया, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जाम के डेट मिलना बहुत टफ था। मुंबई में लॉकडाउन था, 3 एग्जाम सेंटर में से 2 एग्जाम सेंटर टोटली बंद थे, एक ही अंधेरी का एग्जाम सेंटर चल रहा था, इसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो हमारी एग्जाम के डेट मिल नहीं रही थी, और मेरे एजेंटों के एग्जाम के डेट से उनको मैच करना बहुत प्रॉब्लम था। इसके लिए मुझे 34, बल्कि वो 50 से ऊपर हो जाते थे। अभी भी मेरे मैं 2 महीने थोड़ा आउट ऑफ मुंबई था, अभी भी मेरे 8 एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, और 24 नंबर ऑफ एजेंट 24 नंबर ऑफ यूआरएन मेरे पास है। और ये महीने के अंदर या मुझे दिसंबर तक मुझे 100 एजेंट कंप्लीट करने और हो जाएंगे। बिफोर दिसंबर नए 24, 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक मुझे 100 एजेंट नए बनाने हैं। और वो भी एजेंट की जो मुझे काम करे, यानी कि मैं रिजेक्ट भी करता हूँ, एजेंट को रिजेक्ट भी करता हूँ, मैं एजेंट को रिजेक्ट भी करता हूँ। Very good. Very good. Thank you very much. Moreji, thank you. Thank you Yes, very much. Yes, Aklesh. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. फर्स्ट ऑफ ऑल सारे व्यूवर्स को कांग्रेचुलेशन कि आप लार्जरस डायस एजुकेशन एकेडमी में पार्टिसिपेंट करने के लिए एक डेमो वर्जन में आप अवेलेबल हैं। सबसे पहले मेरा परिचय हो जाए, मैं अखिलेश कुमार यादव गोरखपुर डिवीजन से 2013 से डेवलपमेंट ऑफिसर हूं, और अभी मेरे कैरियर को इन LIC में 7 ईयर कंप्लीट हुए। मैं अपने कैरियर के अर्ली स्टेज पर एक ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल में हूं जो ना कि मेरे कैरियर को, इवन डेवलपमेंट ऑफिसर्स को रोल के लिए भी बहुत जरूरी है। इन 7 साल में मैंने ये सीखा कि आपको कोई ऐसा बंदा नहीं है, यहाँ कई ऐसे सीनियर्स हैं, देखने में आ रहा है जैसे राजेश गैलेक्सी करके कोई फोन है, तो सर भी देख रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप 7 ईयर में मैंने ये महसूस किया कि आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। यानी आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप स्वयं लें, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कोई लेने वाला नहीं है। इन टर्म्स अगर हम अपने कैरियर की बात करें तो नो डाउट हमें कोच की आवश्यकता पड़ती है, और मैंने आपको कांग्रेचुलेशन इसलिए किया कि आप एक राइट कोच के पास हैं।
जो आपकी कैरियर को, आपके डेवलपमेंट को, इवन जिस चीज की आपको जरूरत है वो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। मैं अगर बिजनेस की बात करूं तो बिफोर लार्जरेस्ट डायस एजुकेशन, बिफोर पैंडेमिक, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की एक ट्रेनिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतने सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स के बीच हम कभी ले पाएंगे। लेकिन थैंक्स टू पैंडेमिक, थैंक्स टू कोरोना, कि उसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने रूम और कैरियर के विषय में एक बेहतरीन कोचिंग के माध्यम से, बेहतरीन कोच के माध्यम से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और नो डाउट ये चीजें विगत 1 साल, यानी अगर हम सर के साथ एसोसिएटेड की बात करें तो करीब करीब 18-19 महीने हो गए। क्यों सर? Yes, yes. 18-19 महीनों में हमने ये सीखा कि हाँ, हमारा विजन बहुत बड़ा है, बट कोचिंग के अभाव में, यानी मेंटरिंग के अभाव में हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शंस के पाथ पर चले जाते हैं। और नो डाउट ढेर सारा हमारा समय उलूल जुलूल कामों में, इट मींस कि अगर LIC की ही बात करें तो सर्विसिंग एस्पेक्ट में और पहले अपने आप को प्रिपेयर करने में इतना ढेर सारा समय हमारा चला जाता है। लेकिन नहीं, एक बार अगेन थैंक यू लार्जरस सर कि हमें वो एक दिशा देने का काम किया कि हमें अपने विषय में, अपने बिजनेस के विषय में एक टूल्स के माध्यम से, जो कि आप अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ये चीजें आगे जाके मेरी बातें जरूर याद आएगी कि इतने सारे टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि इवन अगर आप टूल्स को ही फॉलो करके चलें तो आप एक बेहतरीन डेवलपमेंट ऑफिसर, एक बेहतरीन रैंकिंग डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एक बेहतरीन IB अर्नर डेवलपमेंट ऑफिसर्स अपने आप को बना सकते हैं। जैसा कि हम लोग अपने एजेंट्स को ये बताते हैं, सारे ब्रांचेस में एक BOC आता है, BOC डे आता है। आप सबने अपने डेवलपमेंट ऑफिसरशिप में ये बातें अपने एजेंट से करी होगी कि अगर आप सिर्फ BOC डे को ही फॉलो करके चलें तो आप एक सफल एजेंट बन जाएंगे, सफल अभिकर्ता, सफल कैरियर एजेंट के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। ये मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि यदि सर के द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे रूल्स, सारे टूल्स, यानी रूल्स और टूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको इन फ्यूचर कभी किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, किसी मेंटरशिप की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें आपको ढेर सारे पेशेंस की आवश्यकता है, ढेर सारे लगन की आवश्यकता है और ढेर सारी करेज की आवश्यकता है। सर हमें वो सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे इन ड्यूरेशन कोर्स के। आपको अगर उसी को पकड़ के चलते हैं तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। और आप एक दिन देखेंगे आप कि आपने अपना कैरियर एक बेहतरीन हाथों में सौंपा हुआ है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि मैं लार्जरेस्ट डायस एजुकेशन की मार्केटिंग कर रहा हूं। जी नहीं, मैं एक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की मार्केटिंग कर रहा हूं कि उसकी क्या नीड है। एक्चुअली वो नीड मैं जान गया, अभी शरद मोरे आपके सामने अपनी बात रखकर गए हैं, वो जान गए। तो आप जरूर इस बात को ध्यान दें कि आखिर हमने ऐसा क्या पाया कि हम अपने समय को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर मेरे कैरियर की एक स्पीड की बात करेंगे तो एजुकेशन लेने से पहले, यानी सर के कोर्स ज्वाइन करने से पहले मेरे पास 36 एजेंट थे, कोई MDRT नहीं था और इवन निगेटिविटी से भरे हुए थे। ये सोचते थे कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन नहीं। आप अगर इसमें से कोई भी गोरखपुर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं या गोरखपुर डिवीजन के हैं तो लास्ट ईयर मैंने एक MDRT बनाया, एक MDRT बनाया। लास्ट ईयर में मैंने 2 रिक्रूटमेंट किया और बड़े इजीली, और सबसे अच्छी बात है कि वो पैंडेमिक में किया। इट मींस कि अगर हमें 12 महीने का स्पैम मिलता है तो हम अपने आप में एक अच्छा रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। और अभी सर के फर्स्ट बैच के हम लोग स्टूडेंट हैं, तो सारे लोगों ने कमिटमेंट ले रखा है बिफोर दिसंबर 2021 100 रिक्रूटमेंट कंपलसरी। मतलब ये हमारा खुद का कमिटमेंट है लार्जरेस्ट डायस एजुकेशन एकेडमी से और अपने आप से कि सर के मेंटरशिप में हमें 100+ एजेंट इन ईयर रिक्रूटमेंट करना है। आपको ये टास्क बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप मान के चलें कि जब चीजें, यानी मैथ का कोई फॉर्मूला अगर हमें आ जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है।
अगर हम मैथ का कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो उतना ही टफ है जितना जानने वाले ना जानने वाले के बीच का डिफरेंस आप जान सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हमें पता चल चुका है, हम उस पर काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स भाई जितने यहाँ लगे हुए हैं वो जरूर सर के साथ एसोसिएटेड हों, उनको देखें, उनको फॉलो करें और अपने कैरियर को ऊपर लेके जाएं। ओवर टू लाजरस सर। हाँ अखिलेश, आपका 7 साल में कितना रिक्रूटमेंट हुआ और पिछले साल में कितना हुआ? सर मैंने इन लोगों को अभी बताया कि बिफोर पेंडेमिक, बिफोर कोर्स मैंने जितनी एजेंसी मेरी इन फोर्स थी वो है 36 और करंट टाइम पे मेरी 60 प्लस में एजेंसी इन फोर्स है और इसी महीने करीब करीब 5 एग्जाम लाइनअप हैं, 3 कोडिफाई मुझे कराना है। तो वो सब हो पाया एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ। और एक फिर मैं अगेन बोलूंगा कि अगर हमें किसी ने समझाने का प्रयास किया तो हमें ताउम्र उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो लार्जर सर के साथ ही हो पाया। थैंक यू अखिलेश, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। नितिन खुद को अनम्यूट करो जरा, नितिन डागे। जी सर। हाँ यस बोलिए। हाँ, आप वीडियो पे आएंगे थोड़ा? थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ चलेगा चलेगा। हाँ ठीक। ठीक है ना, नहीं तो ऐसे ही बात कर लो। चलो, आपका एलडी एकेडमी के साथ एसोसिएशन क्या रहा, कैसे रहा, उसकी जर्नी कैसे रही, वेरी क्विक में आप बता सकते हैं? नितिन, हेलो। ओके चलो, सो आई थिंक नितिन को फिर बाद में बुला लेंगे। आई हैव सम वेरी बिग सरप्राइज। सर मैं एक एक्सक्यूज मी सर, शरद बोल रहा हाँ बोलिए शरद। हूँ। हाँ सर, मैं एक एडिशन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ तो यहाँ पे ना जैसे अखिलेश जी ने बोला ना कि रिक्रूटमेंट इजीली कर पाओगे, यहाँ पे एक टूल दिया जाता है। जो टूल है ना सर, नॉट ओनली आई यूज माय ऑल एजेंट आल्सो यूज नॉट टू वर्क कॉर्पस, हाँ हाँ माय एजेंट गेट द बिजनेस आल्सो। हाँ मेरे कुछ एजेंट आपके बैच में, एजेंट की बैच में भी आ रहे हैं अभी। हाँ और कुछ ने ज्वाइन भी किया है। तो मेरे रिकमेंडेशन से मेरे 6 डेवलपमेंट ऑफिसर ने सेकंड बैच ज्वाइन किया हुआ है। उन्होंने मुझे इतना ही पूछा था कि शरद तू रिक्रूटमेंट कैसे करता है। जब मैंने बस बताया उनको तो हंसने लगे। तो मैंने बोला कि बेटर वे हंसो मत, बेटर वे ज्वाइन द एलडी अकेडमी और वहां पे आपको सिखाई देगी कि आपको क्या करना होता है और क्या नहीं होता है। बहुत सारे लोग, सर और एक बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे ना, अरे शरद तू बोल के देना कि मेरे मास्टरमाइंड ग्रुप चेंज करके दे। अरे मतलब नहीं 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 नहीं, वो मत चेंज करो। सर ने जो भी आपको दिया होगा आपके सिटी का नहीं रहेगा, आपका मास्टरमाइंड ग्रुप का फ्रेंड आपका अदर सिटी का ही रहेगा। तो ये एक मेरा एक एडिशनल बताना है कि आपको एक टूल मिलेगा जिसमें आपको इंश्योरेंस नाम का वर्ड नहीं यूज करना है, जिससे आप एजेंट बना सकते हो। तो मास्टरमाइंड का क्या एक्सपीरियंस रहा है? मास्टरमाइंड का तो सर उसमें मास्टरमाइंड कितना का सीरियस लेना चाहिए लोगों ने? मास्टरमाइंड ग्रुप बहुत सीरियस लेना चाहिए सर। मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से मैं आपको बता दूं, मास्टरमाइंड ग्रुप से मुझे विनय जोशी सरों ने बहुत सारी चीजें सिखाई। हाँ तो मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह मास्टरमाइंड से मीटिंग में ऑल ओवर इंडिया के 7 या 8 डेवलपमेंट ऑफिसर्स का एसबीएस का ग्रुप बनता है और वो अलग अलग इसमें यू नो वो करते हैं। नितिन, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो आप अलग अलग यू नो एरिया से अलग अलग परफॉर्मेंस के लोगों को इकट्ठा बिठाया जाता है। तो कोई एनओपी पे परफॉर्मर रहता है, कोई प्रीमियम पे रहता है, कोई रूरल में रहता है, कोई यू नो अर्बन में रहता है, कोई एकदम टॉकिंग में बहुत हाई रहता है, कोई टॉकिंग कर नहीं सकता है। ऐसे सब एकदम मिक्स में यू नो लोगों को ये एक जगह बिठाए जाते हैं। तो सर और उसका एक कोई, एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? हाँ और एक प्राइवेट का एजेंट एलआईसी में कैसे कन्वर्ट करे उसके भी एक्सपर्ट है अपने यहाँ। हाँ वो भी एक्सपर्ट है कि वो भी सिखाने के लिए। सर मुझे हर एक चीज में एक संजय गिलानी सर से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, विनय जोशी जी से, कि हमें ना बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, उस बुक का आपके मीटिंग में कैसा यूज करना है। हाँ वो विनय जोशी सर से मिला। आशीष तलाठी सर से मुझे ना एजेंट से कैसे बात करना, कि जिससे हमें ये करना है। कुछ मॉर्निंग एक्टिविटीज उन्होंने बताया था कि मॉर्निंग एक्टिविटीज कैसे करना। मैं अभी एक मॉर्निंग में मीटिंग भी लेता हूँ मेरे एजेंटों की। मैं मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मेरी मीटिंग होती है
वो भी गूगल पे ही है। गूगल मीट पे मैं बेसिकली मेरी मीटिंग गूगल पे मीट पे लेता हूँ। तो 6 बजे मेरे 10 एजेंट है जो जिनको एक टारगेट है MDRT बनना है, तो वो 6 बजे हमारा मीटिंग स्टार्ट होता है। 6 से लेके 6:40 तक की मीटिंग रहता है। उसके बाद हम रुकते नहीं, और सिर्फ यही होता है कि हमने दिन भर क्या काम किया कल का और आज क्या करेंगे उसका रिव्यू होता है, बस उतना ही। तो याद रहता है कि मुझे वो काम करना है। तो सुबह में कोई भी काम करते, अगर सुबह में एक गाना गुनगुनाओ तो पूरा दिन में रहता है। अगर सुबह किसी एजेंट को एक ही, अरे आज मुझे 3 पॉलिसी कंप्लीट करना है, और दिन भर उसके दिमाग में वही रहता है, तो वो दिन भर में वो पॉलिसी निकाल लेता है। तो ऐसे एक मुझे आशीष तलाटी सर ने सिखाया था, मास्टरमाइंड ग्रुप से ही मुझे वो सीख मिली थी। और बहुत सारे लोग अपने DO, मेरे DO भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप खुद में बहुत अच्छा सा टैलेंट है, सिर्फ उसको आप एक्सपोज नहीं करते, अरे लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। वही मैं भी था आपके जैसा कि लोग क्या बोलेंगे, मैं इम्प्लीमेंट करने लग गया और कॉन्फिडेंस आता रहा। इसलिए मैं यही बोलूंगा, आप में सभी में बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते। सीधा सीधा मेरा ये आप पे सभी को आरोप है, और कितने लोग एक्सेप्ट करते मालूम नहीं, लेकिन बोलना है मेरा। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सो वी हैव आवर चीफ गेस्ट फॉर दिस इवनिंग, मिस्टर कौशिक घोष, हु इज नंबर 9 इन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। और उन्होंने फर्स्ट बैच उन्होंने ज्वाइन किया था। तो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन कौशिक सर, तो प्लीज अनम्यूट एंड एक सेकेंड ना सर, आपका वीडियो ढूंढ रहा हूँ मैं। नमस्ते सर। नमस्ते, एक सेकेंड फ्रेंड्स, सर। आपने वीडियो शुरू किया है? हाँ वीडियो शुरू किया सर? हाँ, वीडियो शुरू किया ना। एक सेकेंड, दिख नहीं रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा कैसे? नहीं दिखाई दे रहा है, आगे ओके। यस सर, सो कौशिक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर joining this class. So yeah, thank you. Yes, over to you. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं सुन रहा था मेरा ओल्ड फ्रेंड्स, तो लाजरस डायस एकेडमी में पहले तो हम बताएगा लाजरस डायस के बारे में। देखिए, सर के बारे में यही चीज बताना चाहता हूँ कि सो वेरी हम्बल से भी ऊपर कुछ बात हो सकता है, तो वो है सर। आपने उनका साथ काम कीजिएगा, बाहर से लग सकता है कि लाजरस इज अ वेरी फेमस ट्रेनर, लेकिन व्हेन यू विल मीट विथ हिम, उनका साथ इंटरेक्शन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सो वेरी हम्बल। क्योंकि मैं तो अच्छा, मेरे को स्पेशल अच्छा लगता है, आपको हम कारण बता कि मेरा जो एल्डर ब्रदर है एकदम आप जैसा दिखने में, तो इसीलिए हो सकता है ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, इट वॉज नॉट अ जोक, ही इज वेरी हम्बल, कोऑपरेटिव। सबसे बड़ा है कि उनका अंदर में जो मैंने देखा, मैंने दिल दिमाग से किसी का स्टूडेंट का भलाई करना चाहता है तो लाजरस डायस जी क्या क्या ना सिखा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ बैठ के, जब टाइम मिलता है, कि ग्राफोलॉजी से लेके कैसे चिबा के खाना है। फ्रेंड, इंडिया में कोई नहीं सिखाएगा कि 36 टाइम्स बाइट करने का बाद खाना है, क्योंकि सर का ये सिस्टम है कि फैमिली प्लानिंग मतलब फैमिली मीटिंग, किधर में कौन सा डे में क्या करेगा, ये सब जो चीज है ना, कि ही वाज ट्राइंग टू गिव ए होलिस्टिक ट्रेनिंग। जैसा कोई ट्रेनिंग में आओ तो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक एवेन्यू में जाता है। सर का ट्रेनिंग सेशन है हाईवे, मतलब इतने सारा लेंस है, 16 लेंस है, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चीज तुम लोगों को सिखाएगा सर। और एक चीज मैं मानता हूँ, एक्चुअली हम लोग गलती करके क्या करता हूँ, बासब तुम भी है, मैंने देखा है कि हम लोगों का ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा ना एजेंट का ट्रेनिंग ही हम लोग ज्वाइन कर लेता है। ट्रेनिंग ज्वाइन करने का है तो एक्सक्लूसिवली डेवलपमेंट ऑफिसर का ट्रेनिंग, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफिसर का काम मेनली है रिक्रूटमेंट, उसका बाद गिविंग ट्रेनिंग। और हम लोग क्या करता है ना, कोई ट्रेनिंग में ज्वाइन करता हूँ, उसमें ज्यादा से ज्यादा कैसे पॉलिसी बेचा जाए, क्या प्लान है, वो सब ही सिखाया जाए। दैट इज डेफिनेटली नीडेड, बट जब तुम्हारा पास आदमी होगा तब ना उसको तुम सिखाएगा। तो कैसे रिक्रूट करना है, एक्चुअली मैं ये मानता हूँ डेवलपमेंट ऑफिसर का अंदर में ऑलरेडी स्किल है, नहीं तो इतना दिन नहीं रह सकता। लेकिन क्या होता है, हम लोग का ना फोकस है सर, वो अलग हो जाता है। वी बिकम, आपने जो सिखाया ना, हमारा बहुत याद रहता है कि पॉपुलर
कोऑर्डिनेट में हम लोग आ गया तो हम लोग दिन भर एजेंट का खिदमतगारी करता। हम तो नहीं करता हूँ, आपको मालूम है मैं तो पूरा ही फ्री हूँ, अभी तो फ्री कुछ नहीं करता हूँ, कोई एजेंट भी नहीं फोन करता है, कुछ नहीं करता है, क्योंकि मैं पूरा सिस्टम बनाया कि ये काम के लिए ये है, वो काम के लिए। हाँ, a leader is a leader where he should be always in the darkest hour. Everybody knows कि पार्टी का सामने में जाके कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं हूँ। तो लाजरस डायस सर ने ये सब सिखाया कि हाउ टू व्हाट शुड बी आवर रोल, क्योंकि हम लोग ना ज्यादा डेवलपमेंट ऑफिसर लोग ना हम लोग पॉपुलर क्वाड्रेंट में है। पॉपुलर क्वाड्रेंट क्या है वो रहने दो, लाजरस डायस सर का क्लास में आओ तो सिखाया जाएगा। अब सर ने ये सिखाता है कि 2 साल बाद में कुछ करने का नहीं है, आराम का इसका जिंदगी करो। ये चाहते हो ना, ये चाहते हो तो सर का क्लास ज्वाइन करो। क्या सर ठीक बोल रहा हूँ? कि आपने जो इंजन सिस्टम, इंजन मेरा भी है आपको मालूम है, लेकिन इंजन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन में हम कितना भी, हाँ शरद मोरे है, 1-2 चीज है, ये लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, हम उसका सामने में मतलब सैल्यूट करता हूँ कि बाप रे बाप इतना ना सुनने का। तो अभी थोड़ा सर अंदर में हो ही जाता है कि क्यों ना सुने। तो ना फिल्टर के लिए सर ने सिखाएगा तुम लोगों को कि कैसे मतलब टेलीकॉलर अपॉइंट किया जाए। वो टेलीकॉलर को भी तुम अपॉइंट करेगा तो वो सक्सेसफुल होगा कैसे, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सा टेलीकॉलर को रखना है। मतलब सर इतना डीप में थिंकिंग करता है कि हमारा काम का एक चीज, क्योंकि एक चीज मानो कि बहुत आदमी ने सिखा आता है, सर ने एक्चुअल में काम किया है। Many of you may not be knowing कि actually he was a manager but his job was a development officer, right? कौन सा कंपनी है? बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। बिरला सन लाइफ में सर ने क्या कुछ किया तुम लोगों को जब बताएगा तो you'll understand कि he has done miracle। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और है सिस्टम, हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ भी काम करो तो उसका डेवलपमेंट ऑफिसर लोग क्या होता है, सामने में एक पेड़ है, पेड़ में थोड़ा बहुत फ्रूट्स है, उसको उठा लेते हो, थोड़ा ऊपर जाओ तो बड़ा फ्रूट मिलेगा, वो लेने का हम लोग कोशिश नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम लोग के पास कोई सिस्टम बोल के चीज ही नहीं है। और सर ने जैसा वो लोग भी बताया कि सर ने इतने सारा तुम लोगों को टूल्स देगा, वो टूल्स को फॉलो करो। सिर्फ वो टूल्स को फॉलो करने से ही बहुत कम हो जाएगा। ये है। और मेरा ये बोलना है कि जो सिलेक्शन ऑफ एजेंट, सर आपसे मैंने 2-3 चीज सीखा है जो मेरे को एक्चुअल में काम में आया। जैसे कि आपने जो बोला ना कि 30 इयर्स का ऊपर होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, मेल होना चाहिए, तब जाके सक्सेसफुल होता है। अभी मेरा पास चॉइस है बोल के मैंने देखा, इन लोगों को लिया तो काफी सक्सेस मिला, काफी सक्सेस। आपको अभी बोला कि मैंने पूरा विजन चेंज कर दिया। अभी मैं रिक्रूट करता हूं तो MDRT के लिए ही करता हूं, क्योंकि मेरा पास टाइम बहुत कम है। मेरा पास बहुत, और सर ने मेरे को हिम्मत दिया। आज भी एक इंटरव्यू लिया, मैं तो इंटरव्यू लेता हूं, आपको भी मालूम है कि मैं पूछता हूं कि व्हाई शुड आई टेक यू। ये तुम लोग नहीं करते हो, किसी को भी मिला आ जाओ प्लीज आ जाओ, ये करके नहीं होगा। हम पूछता हूँ व्हाई शुड आई टेक यू इन दिस प्रोफेशन। ये सर ने सिखाया कि जस्ट डोंट रिक्रूट बट सिलेक्ट, क्योंकि सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सोचेगा कि अरे कौशिक जी बोलता है ये इतना बड़ा हो गया, ये हुआ, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग का सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज है हम लोग का टाइम। तुम्हें खराब पौधा बूझेगा, वो पौधा से कुछ नहीं ये होगा। तुम्हारा जमीन भी तो लिमिटेड है ना, टाइम भी तो 24 आवर्स। कितना टाइम हम लोग काम करेगा? 12 आवर्स, 13 आवर्स। और तुम बोलेगा कैसे हम सिलेक्ट करेगा, वो पता चल जाता है। तुम देखो आलसी आदमी, ये सर ने सिखाया। एक्चुअली आपने जो टूल दिया मैंने उससे पूरा छानबीन करके मेरे को ये समझ में आया कि जो ये काम करेगा, जिसको हम लेगा, उसका क्या पॉजिटिव माइंडसेट है, वो मार्केटिंग का बंदा है, उसको बड़ा होने का है। ये सब चीज सर ने जो तुम लोग को टूल देगा ना, वो टूल का अंदर में सब कुछ मिलेगा, तो वो टूल का यूज करो। एक्चुअली मैं भी चाहता था सेकेंड बैच में आने के लिए, लेकिन अभी सर आपको बताया कि मेरा इतना ये हो गया कि एक्चुअली मैं बिजी रहता हूँ सर, ज्यादा MDRT लोगों को COT, अभी मेरा COT 2 हो गया, तो उन लोगों का ना बड़ा काम करना अभी कोरोना का बाद बहुत मुश्किल हो गया, तो बहुत ज्यादा टाइम उन लोगों के लिए देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स हम इतना ही बताएगा,
बहुत ट्रेनिंग मिलेगा। लेकिन एक दफे लाजरस डायस एकेडमी में आ जाओ, ज्वाइन करो। अच्छा ना लगे तो मेरा नंबर लिख के रखो 9831002237। हाँ, तुम मेरे को बताओ, क्योंकि इतना गारंटी मैं दे सकता हूँ कि ही विल ट्राई, नॉट ओनली हिज लेवल माइल, ही विल गो एक्स्ट्रा माइल फॉर यू। तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, यू कॉल हिम, ही विल गिव यू पर्सनल सजेशन। हाँ, इतना लवेबल आदमी है। हम तो बहुत मिस करता हूँ सर आपको। कभी आपका दया होगा तो थोड़ा बहुत स्लाइड्स अगर भेज दीजिए तो मेरे को अच्छा लगेगा। हाँ, और क्या बताएगा? तो अभी कब से आपका क्लास चालू हो रहा है? नहीं, आज हमारा फर्स्ट सेशन है, आज इनॉग्रल सेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा। काफी लोग ज्वाइन करने के बाकी है, तो बट वी आर स्टार्टिंग द बैच एनीवे। आराम से करो, बहुत अच्छा करो, क्योंकि देखो LIC को सामने में लेके जाने का, LIC का झंडा ऊंचा रहे, ये हम लोग का सबसे बड़ा मकसद है। इसके लिए सर काम कर रहा है। आई सैल्यूट टू यू, और आप ऐसे ही करते जाइए। हम आपके लिए बहुत प्रेयर करता हूँ। सब जो ज्वाइन कर रहा है, सबका मंगल है। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग भी बताओ, क्योंकि देखो मानो और 4-5 DO आ गया, उसका भी भलाई हो गया, LIC का भलाई हो गया, तो अल्टीमेटली हम लोगों सबको अच्छा है। तो सबका भलाई के लिए सोचो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच कौशिक जी, थैंक यू वेरी मच। तो कौशिक जी, कौशिक जी खुद अगर आप देखेंगे मेरिट लिस्ट में नंबर 9 है उनका, बट एक्चुअली वो भी इतने हम्बल और एक फोन कॉल पे आ जाते हैं। एक्चुअली मैं भी उनको कॉल नहीं किया, आशीष वंजारा सर ने कॉल करने के बाद भी उन्होंने मतलब ऐसा नहीं सोचा कि मैं खुद नहीं कॉल किया, और एक कॉल पे वो आ जाते हैं। तो सर थैंक यू रियली वेरी मच, तहे दिल से थैंक यू सर, थैंक यू करना चाहता हूँ। एंड फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ द सेशन फॉर टुडे। और we have heard our people who have already done our program, और उसमें से शरद मोरे एंड अखिलेश, उन्होंने सेकेंड ईयर का भी जो बैच है वो ज्वाइन कर लिया है। सो वी आर ऑलरेडी इन द सेकेंड ईयर, ऑलमोस्ट 80% हमारे फर्स्ट बैच के DOs। अभी तक हम लोग जो भी ट्रेनिंग करते थे वो डेवलपमेंट ऑफिसर का, ऐसे देखा जाए तो हम लोग ऐसे इतना बड़ा विस्तार में प्रोग्राम कभी किया नहीं था। हम लोग सिर्फ 3 दिन का प्रोग्राम करते थे, जिसको हम लोनावला में करते थे। काफी लोग उसमें अटेंड किया। आई थिंक अनिल बोयर, आई कैन सी हियर अनिल बोयर, आई थिंक यू हैड अटेंडेड आवर 3 days का। तो काफी लोगों ने 3 days का सेशन किया है। उसके बाद MDRT का 3 years का गारंटीड MDRT हम लोग ने जो प्रोग्राम शुरू किया था 2008 में, और वहां पर हम एक्चुअली इसके स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के हम देते थे कि 3 साल में अगर आपका MDRT नहीं हुआ तो आपका जो भी पैसा आपने भरा है वो रिफंड होगा। और उसमें खाली आपको क्या करना है, जो बताया जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो एजेंट्स का तो हमने काफी 3-3 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। उसके बाद मुझे लगा कि जस्ट LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर्स सिर्फ नहीं, बट ऑलमोस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस के भी 2-3 हजार एजेंसी मैनेजर, सेल्स मैनेजर्स जिनको रिक्रूटमेंट का टास्क दिया जाता है, उनसे भी मैंने काफी लोगों से इंटरेक्ट किया। बिकॉज ऑलवेज कंपटीशन क्या कर रही है, कंपटीशन में क्या हो रहा है वो पता लगना और लगाना बहुत जरूरी है। तो मेरा LIC का जो टॉप मैनेजमेंट से उतना मतलब कम्युनिकेशन और उतना कांस्टेंट कम्युनिकेशन होता नहीं है जितना प्राइवेट इंश्योरेंस के कुछ CEOs है, कुछ सेल्स हेड्स है, काफी सारे ट्रेनिंग हेड्स है, और मेरे लिंक्डइन में पूरे मतलब प्रोफाइल में हम लोग काफी 3000 टोटल प्राइवेट इंश्योरेंस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ काफी इंटरेक्शन होता है, और इस वजह से शार्पनिंग द सॉ जो मेरा भी कॉन्स्टेंटली होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो 1 साल का कोर्स जो हमने अभी लॉन्च किया है, मैं थोड़ा सा पहले काफी मतलब कंफ्यूजन में था कि जितना कड़ी शक्ति से हम लोग मतलब जो इतना फोकस से और इतना स्ट्रिक्टली हम लोग जो एक फिजिकल सेशन करते थे, वो डिजिटल सेशन भी उतना ही पावरफुली कर सकेंगे क्या। और मैं आपको बता के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जो संकोच थी, जो संकोच मेरे माइंड में था शुरुआत में,
वो 1 साल के बाद हमारे 2 डेवलपमेंट ऑफिसर्स के बैच, एक बैच तो कंप्लीट हो चुका, सेकंड बैच अभी दिसंबर में कंप्लीट होगा। एजेंट्स के 2 बैच ऑनलाइन हम लोग किए हैं, अभी डेवलपमेंट ऑफिसर का ये 3rd बैच है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल, और मैं बताऊंगा कि ये जो पूरा करिकुलम है उसको साइंटिफिकली कैसे डिजाइन किया है, बिकॉज कंटेंट जो है और कॉन्टेक्स्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और हम लोग अभी सबसे पहले लेट्स लुक एट व्हाट आर द एक सेशन, तो आई जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई ओके। सो सबसे पहले ये जो सेशन है इसके पीछे व्हाट आर द थिंग्स दैट आर देयर व्हिच वी शुड so we'll start with why you should choose Kaizen recruitment। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है Kaizen। आई डोंट नो कि आप लोगों को Kaizen के बारे में पता है कि नहीं है, बट Kaizen मतलब काई मतलब कंटिन्यूअस, zen मतलब इम्प्रूवमेंट। ओके, सो Kaizen जो है ये Kaizen कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आपको पता है कि जापान जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरे हिरोशिमा नागासाकी और पूरा उसको जापान को खत्म कर दिया गया था, बट उसके बावजूद काइजेन का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लेकर उन्होंने बहुत ही जल्दी फिर से वो एक डेवलप्ड नेशन के भूमिका मतलब अभी निभा रहा है, और ऑलमोस्ट इन द टॉप 5 कंट्रीज में वो है। और जापान ने ये जो काइजेन का सिस्टम बनाया, तो काइजेन और जो अमेरिकन सिस्टम होती है ना, अमेरिकन नॉर्मली बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अमेरिकन सिस्टम में होता है। अमेरिकन में क्या करते हैं कि शॉर्टकट अपनाना है, कोई टेक्निक्स अपनाए, कोई ट्रिक्स अपनाना है, और वो करके जाते हैं। बट क्या देखा गया कि काइजेन जो है, जो जापानीज सिस्टम है, ये सिस्टम के वजह से जो स्लो मूवमेंट होता है, मतलब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बड़ा धूम धड़ाका नहीं होगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम रूट्स के ऊपर काम करें, जमीन के नीचे जो अपने अंदर जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर हम काम करें। मैं अभी एक वीडियो सीरीज बना रहा हूं, उसमें मैं ये बता रहा हूं कि नॉर्मली अभी तक हमारे इंडस्ट्री में हम लोग फोकस ज्यादा कर रहे थे नॉलेज और स्किल्स के ऊपर, बट नॉलेज और स्किल जो है सक्सेस में सिर्फ 20% काम आती है, 80% आपका साइकोलॉजी है। अगर आपके एजेंट्स का भी अगर आप देखो 80% साइकोलॉजी है, 20% सिर्फ नॉलेज और स्किल्स है। बट अगर ट्रेनिंग की दुनिया में अगर आप देखेंगे 90% ट्रेनिंग्स पूरा स्किल्स और नॉलेज के ऊपर है, और ट्रिक्स के ऊपर है, और टेक्निक्स के ऊपर है, जो एक्चुअली ठीक है वो एक कम समय तक चलता है। बट अगर आपको एक लंबे दौर का खिलाड़ी बनना है, अगर आपके एजेंटों को एक लॉन्ग टर्म प्लेयर बनना है, जो मतलब कंसिस्टेंटली, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जो मेरे एमडीआरटी का करीबन मैंने 7 साल 7 बैचेस मतलब ऑलमोस्ट 10 साल, 3-3 साल का ऐसे 7 कोर्सेज 7 साइकिल्स मैंने कंप्लीट किए। और जब एलआईसी ने 2013 में पूरे 50 के 50 प्रोडक्ट्स विड्रॉ किए थे, और सिर्फ एक ही 814 का प्रोडक्ट था, आप लोगों को शायद याद है कि इंडस्ट्री पूरी गिर गई थी उस समय, किसी को पता नहीं चल रहा था अभी क्या बेचूं, क्योंकि जो भी सबके फेवरेट प्रोडक्ट्स थे वो सब निकल गए थे। बट आई विल टेल यू कि हमारा, क्योंकि बॉम्बे में मेरा ज्यादा ऑलमोस्ट 2500 एजेंटों ने प्रोग्राम मेरा किया था ये 3 साल का, तो बॉम्बे के जितने मेरे ट्रेनिंग के जो बैच में थे वो लोग सब उस समय सिर्फ एक प्रोडक्ट था 814, फिर भी वो लोग बॉम्बे में सब ब्रांचेस में टॉप 10 में सिर्फ मेरे एकेडमी के लोग थे, बिकॉज हम लोग कोई प्लान और प्लान कॉम्बिनेशन या प्लान के ऊपर हम फोकस ही नहीं करते, हम क्लाइंट के नीड के ऊपर फोकस करते। सो आप ये देखेंगे कि जब आप लंबे समय का प्लेयर बनेंगे, इफ यू बिकम अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, don't just do policies and plan combination, that is good, it is good for the smaller agent, the new agent, but once the agent becomes 2 years, एक बार 2 साल एजेंट का कंप्लीट हो जाता है, तो आपको नीड बेस्ड सेलिंग, गोल बेस्ड सेलिंग जो क्लाइंट का है वो सब करना शुरू करना चाहिए। अगर मैं रिसर्च किया हूं तो देखा हूं कि आईसीआईसीआई का जो एवरेज प्रीमियम टिकट साइज 1 लाख है, एलआईसी का अभी भी टिकट साइज जो है 18,000 है। तो मतलब ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि प्राइवेट कंपनी के सभी लोग, भले वो लोग पॉलिसी बहुत कम करते हैं, भले एलआईसी की हमारी जो मार्केट शेयर है वो काफी बड़ी है, बट अगर आप खाली एनुअल प्रीमियम में देखेंगे तो एलआईसी का अभी 42% मार्केट शेयर है,
और पॉलिसीज में ऑलमोस्ट 60-65% का मार्केट शेयर है, बट प्रीमियम में हम काफी लेवल पे लूज कर रहे हैं। सिंगल प्रीमियम को पकड़ के फिर हमको 75% मार्केट शेयर है, बट सिंगल प्रीमियम कोई पॉलिसी, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर या कोई एजेंट का इनकम नहीं बढ़ाती है, तो इस वजह से हमको नॉर्मल एनुअल प्रीमियम के ऊपर हमको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो प्राइमरी लॉन्ग टर्म प्लेयर बनना है तो हमको साइकोलॉजी के बारे में बात करना पड़ेगा, राइट। तो टेल मी हाउ मेनी, अभी है ना, आपको आप में से एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड in recruiting 100 agents annually, and how many of you would be would like to all your agents to be top performers? Okay, तो अगर आप अगर आप ये चाहते हो तो प्लीज चैट में यस डालो, यस, all of you quickly, those who think that they should do 100 agents in the year, so please put yes in the chat, everybody, quick, all of you. क्योंकि अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू टेल यू अपफ्रंट, दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू। ओके, मतलब आप अगर नहीं करना चाहेंगे तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, तो यू शुड नॉट ज्वाइन, बिकॉज ओनली अगर आप 100 एजेंट्स करना चाहते हैं और कंसिस्टेंटली आपके एजेंट जो है वो अगर आपको काम करने वाले कंसिस्टेंट काम करने वाले एजेंट्स अगर आपको तैयार करना है तो ही फिर ये प्रोग्राम आपको काम में आएगा। हम कोई शॉर्टकट का काम नहीं करते, कोई मैजिक का काम नहीं करते, हम एक कंसिस्टेंट आपको टूल्स देते हैं जिससे कि आपका रिक्रूटमेंट बढ़े। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है। और आप लोग, आई एम वेरी हैप्पी, क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि अगर आप लोग 100 एजेंट्स एन्युअली कंसिस्टेंटली अगर करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। एंड आपका एजेंट्स को कंसिस्टेंट प्रोड्यूसर अगर बनाना है तो उसके लिए भी एक टेक्नोलॉजी है, उसके लिए भी एक टूल है जो मैं आपको दूंगा। कल ही मैं शेलाट साहब से बात कर रहा था और मैं ये हमेशा बिलीव करता हूँ, तहे दिल से बिलीव करता हूँ कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर का एसबीआई का जो रोल है, ये रोल है ना सिर्फ एक सुपरमैन ही इसको निभा सकता है। ओनली सुपरमैन कैन प्ले दिस रोल, क्योंकि इतना जबरदस्त इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नॉर्मली कोई एक नॉर्मल इंसान है ना तो इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। एंड आई हैव टू सैल्यूट ऑल ऑफ यू कि इतने सालों से आप ये निभा रहे हैं। बट द ओनली थिंग इज व्हाट इज हैपनिंग, आई थिंक आप लोग सब निभा तो रहे हैं, बट मुझे एक ही चीज आपको बताना है कि जो स्ट्रेस लेवल आपका है, जो अनहैप्पीनेस लेवल है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और जिसके वजह से ये प्रोग्राम मैंने इसलिए डिजाइन किया है कि यही काम जो सुपरमैन का काम हम सिस्टमैटिकली सिस्टम के जरिए से, प्रोसेस के जरिए से, इंजन के जरिए से स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, शरद जी को, अखिलेश जी को, कौशिक जी को। आप लोग आज अपना कीमती समय यहाँ पर आपने दिया, और सब पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर आए, ऑल डेवलपमेंट ऑफिसर्स एसबीएस, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे आज, बट आज आप यहाँ पर आए हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि आज का जो भी सेशन का जो टाइम आप समय हमारे साथ बिताएंगे, दैट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। ओके, बेसिकली आज का जो सेशन का ऑब्जेक्टिव 3 है। आई विल बी लेइंग आउट ऑब्जेक्टिव ऑफ द काइजन 1 ईयर रिक्रूटमेंट कोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, तो 1 साल का जो कोर्स रहेगा ना, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा आपको बहुत बड़ी क्लियरली वो समझना होगा। देन मैं आपको ये बताऊंगा कि लोग सीखते कैसे हैं, हाउ डू पीपल लर्न। लर्निंग का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी है जो अगर हम नहीं समझेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू लर्न। और ये लर्निंग का जो साइकोलॉजी है वो इस प्रोग्राम में हमने कैसे मतलब उसको डिजाइन किया है। और आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट में आपका पर्सनल, खुद का पर्सनल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं 3 चीज आज आपको बताने वाला हूं। तो आपको एलडीए एकेडमी क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, जैसे कौशिक सर ने बताया, एलडीए एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस से क्रिएट हुआ। 16 साल में एज एन एडवाइजर काम किया हूँ, 6 टाइम्स एमडीआरटी क्वालिफाई किया हूँ। 1997 में इंडिया के तरफ से फर्स्ट कॉन्टिंजेंट जो एलआईसी का रिप्रेजेंटेटिव थे इन 2000 एटलांटा एमडीआरटी की मीटिंग, भरत पारेख, मैं और बहुत सारे हम लोग, मतलब 20 लोग थे जो फर्स्ट टाइम इंडिया का फ्लैग जो है वो एमडीआरटी में पेश किया गया था।
बिकॉज तब तक 20 एडवाइजर्स कोई एक कंपनी से नहीं जाते हैं, जब तक नहीं जाते हैं तब तक उनका फ्लैग ये नहीं होता. सो they had presented the Indian flag first time in 2017 and 20 of us had gone. तो MDRT मेरा 6 साल मैंने किया है. I work like a manager like you for 4 years. Okay, मतलब as exactly like a manager, recruitment manager. और वो मैनेजर मैंने बिरला सन लाइफ ज्वाइन किया क्योंकि वहां डेविड नॉल करके सन लाइफ कनाडा से हमको ट्रेनिंग, फर्स्ट बैच को ट्रेनिंग देने आने वाले थे. और इस वजह से बिरला सन लाइफ में मैं फोर्थ मैनेजर हूँ. चौथा मतलब फोर्थ है. उसके पहले सीईओ था, जो सेल्स हेड थे, रिक्रूट हुए थे, और मार्केटिंग हेड रिक्रूट हुए थे. और चौथा जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे सिर्फ इनवाइट किया गया. एंड तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि एक अलग चैलेंज थी और ट्रेनिंग में मुझे आना था और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस मुझे लेना था. तो इस वजह से, और एज अ मैनेजर मैंने काम कभी किया नहीं है. आई हैव वर्कड इन हिंदुस्तान लीवर एज अ ब्लू कॉलर वर्कर, बट एज अ व्हाइट कॉलर में कभी भी कुछ किया नहीं था. तो वो भी मुझे एक्सपीरियंस करना था. 3000 एडवाइजर्स 3 महीने में मैंने रिक्रूट किए. बिरला सन लाइफ का सीईओ जो है वो मेरे टेबल पे ऑलमोस्ट हर मंडे को 11 बजे उनके टेबल पे अगर रिपोर्ट नहीं जाता था ये रिक्रूटमेंट का, मैंने एक सिस्टम बनाया था और उस सिस्टम के जरिए से 1 पेज रिपोर्ट में बनाता था. 33 ब्रांचेस का रिपोर्ट होता था और वो सीईओ को जाता था 11 बजे. बट अगर वो 11:05 हुआ तो सीईओ खुद मेरे टेबल पे आते थे क्योंकि हम लोग सेम फ्लोर पे थे और मुझे पूछते थे कि मिस्टर डायस वेयर इज द एडवाइजर रिक्रूटमेंट रिपोर्ट. और उनको एक स्पेशल डिपार्टमेंट लाइसेंसिंग के लिए बनाना पड़ा. 24,000 एजेंट्स, 24,000 प्रोस्पेक्ट्स आए थे और उसमें से डिलीट होके फिर 3,000 सिलेक्शन में ये हो गया. करीबन 17 साल में 200 MDRTs मैंने क्रिएट किया. सो दैट इज अ रीजन व्हाई आई एम here. Why do I do this? ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? The reason I am doing this is because मैं खुद को I was washing taxis at the petrol pump when I was in the 7th standard. तो वहां से लेके एक सक्सेसफुल एडवाइजर, मैनेजर और ट्रेनर मैं बन सका. बहुत सारे लोगों ने ये मेरे जर्नी में कंट्रीब्यूट किया, जैसे पापा जी कोचर है, अतुल गोरे है, हेलमेट फ्लैश करके जो संतोष नायर और मैंने 1995 में साथ में जो प्रोग्राम किया था एक अमेरिकन कंसल्टेंट के साथ. तो ये मेरी जर्नी जो है वॉशिंग टैक्सी से लेके मैनेजर और ट्रेनर करके मुझे जो ये एक्सपीरियंस मिला और आज जो इतना मतलब बहुत सारा जो मेरे पर्सनल लाइफ में इतना सारा जो ग्रोथ हो गया. My son is an actuary with HDFC Standard Life. My daughter-in-law is an actuary. So basically ये सब जो जर्नी था, इट हैज बीन सो इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग. एंड मुझे ऐसा लगता है कि व्हाई आई डू दिस इज आई बिलीव दैट इफ आई कुड मेक इट बिग ना देन एनीवन कैन डू इट. तो एजेंटों को, आप लोगों को, सबको, आई थिंक इट्स वेरी इजी प्रोवाइडेड यू हैव अ सिस्टम. Therefore, I created this step-by-step process to be successful. So how many of you are excited to know and understand this process? तो थोड़ा आप चैट बॉक्स में I टाइप करेंगे. I am interested. I please quickly. All of you. IAI, just type IAI. I am interested. Okay. Quick, come on, fast. Very good, excellent. Because if you are interested, then only the journey is for you. Okay. Thank you very much. Very good. All of you, quick. Very good. Excellent. Okay, so that is why I do this. There are important thoughts. Okay, ये बहुत important thoughts है. Actually experience जो मेरा रहा है, that people don't lack knowledge, people lack focus and direction. Okay, knowledge का बहुत भंडार पड़ा हुआ है, and I think what is most important is focus और direction है ना, ये नहीं है. knowledge से आप कहीं भी नहीं जाएंगे. You will not go and reach anywhere because of knowledge, but only because of focus and direction. और focus और direction ये system से ही आता है. I can tell you, मतलब इतना powerful होता है. I don't have to remember anything क्योंकि मैंने system बनाया. मेरे खुद का life का पूरा system है. Exactly morning में जब मैं सवेरे उठता हूँ, आप actually tick by tick 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, step by step जो मैं करता हूँ, same मेरा प्रोसीजर रहता है. इसके लिए पावरफुली आई एम एबल टू इम्प्लीमेंट. आप लोगों को भी मैं ये बताऊंगा हेल्थ के लिए कैसे हॉट वाटर थेरेपी है,
फिर आपका सिग्नेचर, आपका अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका सब सिग्नेचर हम लोग चेंज करेंगे। आपका एजेंट को सिलेक्ट करने के लिए कैसे ग्राफोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं। अनिल बोयर, आई विल कम टू यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सेकंड तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या लगता है ना, बहुत सारे लोग आज के समय में यूट्यूब में स्विमिंग करते हैं, बहुत स्विमिंग करते हैं और ये क्या होता है ना, वहां सिस्टम मिलता नहीं है, बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत सारा मतलब टूटा फूटा इंफॉर्मेशन होता है, उसको आप एक जगह पे रख के एक गाड़ी, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारा पार्ट्स लेके आप एक गाड़ी नहीं बना सकते उसके लिए आपको एक प्रॉपर मतलब ये रहेगा। तो स्विमिंग, जो यूट्यूब का स्विमिंग का एक बहुत बड़ा ये एक डिजीज हो गया है। एंड आई थिंक व्हाट हैपेंस इज पीपल थिंक वी आर लर्निंग बट दे आर ओनली इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, इट इज ऑल स्प्लैटर्ड। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि नेवर लेट स्कूलिंग इंटरफियर विथ योर एजुकेशन। आपका जो स्कूल में जो भी आपने सीखा उसको आपके एडुकेशन को रोकने के लिए मत दो। आपका एडुकेशन जो है कंटिन्यूसली है। आई टेल यू जस्ट लास्ट वीक मैंने टोनी ब्लायर करके इंटरनेशनल ट्रेनर है, उनका पूरा सेशन मैंने अटेंड किया। उसके बाद एक राजशेखर करके है, उनका मैंने 90 डेज का चैलेंज करके है, ट्रेनर्स के लिए था 90 डेज का चैलेंज। मैं जस्ट एक हफ्ते पहले उनका ट्रेनिंग ज्वाइन किया हूँ एंड आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग। मतलब आज का भी जो सेशन में है ना, बहुत सारा चीज वहां से जो मुझे आइडियाज मिले हैं वो मैं यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट डज नॉट मैटर फ्रॉम वेयर यू हैव कम। ओके, इट डज नॉट मैटर फ्रॉम वेयर यू हैव कम। आप कहाँ से आए हैं ना, इसका कोई मायने नहीं है, बट आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सक्सेस का 6 प्रिंसिपल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वन इज दैट सर्विंग अ हंग्री मार्केट। तो बेसिकली क्या है कि एज डेवलपमेंट ऑफिसर, एज ट्रेनर या एज डेवलपमेंट ऑफिसर या एज एजेंट, हमको एक हंग्री मार्केट को सर्व करना है। मार्केट इज वेरी हंग्री, मार्केट इज लुकिंग फॉर प्रोफेशनल, मार्केट इज लुकिंग फॉर मार्केट ये देख रहा है कि कितने मतलब कोई प्रोफेशनल उनको मिले जो एकदम उनको सही चीज एज इफ वो उनका फैमिली मेंबर है वैसे करके उनको गाइड करने वाला उनको चाहिए। कस्टमर्स भी बहुत सारे यूट्यूब में स्विमिंग करते हैं, बट आई नो कि प्राइमरली अल्टीमेटली दे वांट टू दिस। अभी BITV में मैंने कल एक वीडियो का सीरीज हमने शुरू किया, मैं आपको पोस्ट करूंगा, अभी वो मैं कवर नहीं करना चाहता हूँ, बट किस प्रकार से ये जो कस्टमर्स है उनको मार्केट में और मीडिया में गुमराह किया जाता है एंड हाउ दे आर बीइंग मिसलेड। So basically there is a very hungry market of people who want to earn money, of people who want to make a living, people who want to change their lifestyle, who want to transform their life, और मुझे लगता है कि भगवान सब जगह नहीं रह सकता था, नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने डेवलपमेंट ऑफिसर को बनाया। ताकि मुझे लगता है कि आज मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूँ, एक सच बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर कॉनरेड पिंटो जी जो है, जो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, हम लोग दोनों साथ में सेम स्कूल में पढ़े हैं, सेम क्लास में, उन्होंने अगर मुझे एज एन एजेंट करके मुझे अगर LIC में मेरा कॉलर पकड़ के, मेरा कान पकड़ के अगर मुझे LIC में वो लेके नहीं जाते और मुझे एजेंट नहीं बनाते, मेरे ना कहने पर भी और मेरे पूरे रेजिस्टेंस के बाद भी उन्होंने मुझे बनाया। आज मैं उनको सैल्यूट करता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने जो लाइफ मेरी ट्रांसफॉर्म हो गई है, मैं खुद बिलीव नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग जो है जो शायद मेरे को 20-25 साल के बाद अगर मिलते हैं ना, वो लोग खुद भी मतलब हैरान परेशान हो जाते हैं कि इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन। और दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ LIC में ही हो सकता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ डेवलपमेंट ऑफिसर ही कर सकता है। और वो क्यों मैं कह रहा हूँ उसके पीछे भी आपको बहुत ये बताऊंगा। एजेंटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मैं बोलता हूँ कि अगर हम लोग खुद को उस लेवल पे अगर डेवलप करेंगे, इफ वी डेवलप आवरसेल्फ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द मार्केट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द prospective agent, there is no problem with the clients, there is no problem with the industry. The only problem that is there is with me. The minute I start understanding, realizing and working on that, it will automatically be a win for me. So serving a hungry market, working smart, building systems to scale. ऑलवेज मैं मेरे मतलब जितने अभी 2 बैच के डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, मैं उनको चैलेंज दिया हूं कि विद इन 3 years दे शुड प्ले गोल्फ। विद इन 3 years उनका पूरा ऐसा सिस्टम और ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा, वो जाके गोल्फ खेलेंगे
और मैं उनको कहता हूं कि मैं खुद भी 3 साल के बाद गोल्फ खेलने वाला हूं, मेरा ट्रेनिंग कंपनी भी ऑटो मोड पे रहेगी, एंड आप लोगों का भी जो रिक्रूटमेंट है, एजेंट्स है, सब चीज जो है ऑटो मोड पे चलना चाहिए। आपका स्ट्रेस बिल्कुल जीरो होना चाहिए और एकदम आप फ्री होना चाहिए सो वर्किंग स्मार्ट रहेगा, बिल्डिंग सिस्टम रहेगा, ऑटोमेशन रहेगा। ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे ऑटोमेटिकली चीज किया जाए। डेलीगेशन एंड आउटसोर्सिंग, बहुत बार हम लोग डेवलपमेंट ऑफिसर ये सोचते हैं ना कि मैं तो मतलब मैं खुद क्या बोलते हैं उसको, मैं खुद एक सुपरमैन हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे चीज आपको आउटसोर्स करना चाहिए। आपका जो कोर है, कोर कैपेबिलिटी, आपका जो कोर रिक्वायरमेंट है वो है रिक्रूटमेंट। आपको सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बाकी सब आपको डेलीगेट करना चाहिए। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर मैं आपको कहूं कि आज इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो लैकिंग है वो लैकिंग है डेटा ड्रिवन डिसीजन। आप जो भी डिसीजन लेते हो वो आपका हंच पे लेते हो, आपका परसेप्शन से लेते हो, बट एक्चुअली आपके पास कोई डेटा नहीं है जो आपको ड्राइव करता है। एक ऑटोमेटिक अगर सिस्टम बनाना है, अगर मशीन बनाना है, इंजन बनाना है, तो आपको डेटा के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि आप कितने कॉल करने पे कितने एजेंट आपके रिक्रूट होते हैं। इसका डेटा, परफेक्ट डेटा आपके पास होना चाहिए। तो ये 6 प्रिंसिपल्स है। जैसे मैं ऑलवेज कहता हूं कि पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे LIC में 32 लाख एजेंट्स टर्मिनेट हुए हैं। 2010-11 में 14 लाख एजेंट थे, आज हमारे पास 11,80,000 एजेंट्स है। 14 लाख एजेंट से 12 लाख ऑलमोस्ट हमारा हो गया। मतलब नेट एडिशन हमारा, जो नेट एडिशन है वो नेट एडिशन हमारा 2 लाख माइनस है। ओके, तो मतलब हमारे इंडस्ट्री में अभी आप सोचो कि एक एक साल में 4-4, 3-3, 4-4 लाख अगर एजेंट्स टर्मिनेट होते हैं, तो कितनी सारी हमारी एनर्जी, कितना सारा हमारा टाइम, कितना सारा हमारा जो फोकस है वो चला जाता है। आपको शायद पता नहीं, बट अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं कि एक टर्मिनेशन, एक एजेंट टर्मिनेट होता है तो एक डेवलपमेंट ऑफिसर का कितना पैसा नुकसान होता है या कितना पैसा लॉस होता है, ये किसी ने आज तक किया ही नहीं है। इस वजह से हम बिंदास बैठे कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, राइट। बट जिस दिन आपको अगर डेटा रहेगा कि आपका टर्मिनेशन का कितना लॉस आपको हो रहा है, आपकी एनर्जी, भले आपका पैसा नहीं गया है, बट आपका जो रोटी है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपका रोटी के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल आप बिरला सन लाइफ में हमने एक्चुअल किया था कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर का एक एजेंट टर्मिनेट होता है तो उसका एनुअली अराउंड 50,000 रुपीज लॉस होता है। ऐसा हमने ये किया था। तो ये एक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए, इसके पीछे ये डेटा है। मैं ऑलवेज आपको कहता हूँ कि डेटा के ऊपर आपको बिलीव करना चाहिए और डेटा रहेगा तभी आप तो मैं रिसर्च कर लिया कि ये डेटा ऐसे रिक्रूटमेंट क्यों इतना सारा टर्मिनेशन क्यों होता है। तो टर्मिनेशन है ना, ये सिम्टम है, ये एक ऊपर सिम्टम है और उसका रूट कॉज होता है। अगर हम रूट के ऊपर काम नहीं करेंगे तो फ्रूट चेंज नहीं होगा। हम फ्रूट के ऊपर काम करेंगे तो फ्रूट चेंज नहीं होता, हमको रूट पे काम करना पड़ेगा। तो वो रूट पे क्या है, मतलब रूट पे उसके लिए मैंने 8 पीस करके एक फॉर्मूला निकाला है। वो 8 पीस अभी वेरी क्विक में बताऊंगा, बट उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, वहां पे आप देख सकते हैं। बट रूट कॉज क्या है, रूट कॉज अगर हमको नहीं मालूम पड़ेगा तो फिर इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। अब हमारा प्रोफेशनल चैलेंजेस क्या है, मंथली एक्टिवाइजेशन नहीं है, मंथली प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, एक्टिवाइजेशन बहुत लो है, बहुत कम एजेंट्स काम करते हैं, एजेंट्स बिजनेस सीरियसली लेते नहीं है, एजेंट को मोटिवेट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, और हमारा खुद का एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर हमारा फोकस रिक्रूटमेंट पे नहीं है। ये प्रोफेशनल चैलेंजेस है। पर्सनल चैलेंजेस क्या है कि मैं प्रॉपर टाइम फैमिली को नहीं दे सकता हूँ, फैमिली में डिस्टरबेंस है, बच्चों को कैसे हैंडल करना वो पता नहीं लग रहा है बहुत सारा स्ट्रेस और ड्रेन हो रहा है, और खुद के लिए तो टाइम बिल्कुल हम निकाल ही नहीं सकते, और हैप्पीनेस का तो अता पता नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गया है या कहाँ घूम गया है। तो इसलिए क्या है ना, व्हाट इज इम्पोर्टेंट ये है इन ऑल द प्रॉब्लम्स कि आपका जो भी लाइफ का प्रॉब्लम है, वेदर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, तो उसमें कॉमन फैक्टर कौन है। हमेशा मैं सोचता हूँ जो भी हर जगह पे अगर प्रॉब्लम आता है तो मतलब उसमें एक ही एक्टर है, एक ही डायरेक्टर है, और वो है मैं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर कुछ चेंज करने से बाकी जो बाहर की दुनिया है
वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. सो इफ आई चेंज, सो व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? इफ आई हैव प्रॉब्लम विद रिलेशनशिप, बिजनेस, फैमिली, I am the common factor. I am the main one person who is common in all the things, and therefore I need to change myself. Business development leads to organic growth. Personal development leads to inorganic growth. Okay. तो ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब अगर आपको ग्रोथ ऐसे चाहिए कि 10%, 15% एवरी ईयर आपको ग्रो होना है, तो फिर आप बिजनेस डेवलपमेंट सीखते रहेंगे तो ठीक है. बट पर्सनल डेवलपमेंट से आपका इनऑर्गेनिक ग्रोथ होता है. और ये पूरे इंडस्ट्री में नॉलेज इंडस्ट्री जो आज की है, उसमें ये देखा गया है कि जितना पर्सनल डेवलपमेंट आपका होगा, जितना आप एक अच्छे इंसान बनोगे, जितना आपका खुद का एक वाइब्रेशन होगा, जितना खुद का आपका एक लीडरशिप क्वालिटी होगा, वेदर आप सेकेंडरी है कि आपका एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर स्किल्स क्या है, बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर अच्छा होते हो, सो ओनली बिजनेस डेवलपमेंट वोंट डू, या पर्सनल डेवलपमेंट खाली करेंगे तो नहीं चलेगा. हमको बिजनेस डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट दोनों करना पड़ेगा. अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आज की दुनिया में और ट्रेनिंग में बिजनेस डेवलपमेंट का बहुत सारा ट्रेनिंग हो रहा है और इतना ऊपर जा रहा है ट्रेमेंडसली वो ऊपर जा रहा है. बट अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट देखेंगे तो वो नीचे जा रहा है. डिप्रेशन, ड्रग्स, लो सेल्फ एस्टीम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन, हेल्थ. देखो ना कितने यंग एक्टर जो है वो सुसाइड कर रहे हैं. कितने सारे लोग जो है उनका मतलब बिजनेस का अच्छे लोग जो है, जो मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये लोग इतने सक्सेसफुल होने के बाद व्हाई डू दे हैव टू डू दिस. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो ये जो कोर्स का डिजाइन है ना, ये कोर्स का डिजाइन किस प्रकार से हमने किया है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली लर्निंग जो होता है ना वो कैसे होता है. तो जब आप लेक्चर सुनते हैं, और ये मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुने, कान से नहीं सुने, सो प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिवील टू यू द ट्रूथ of why you are not learning in spite of thinking that you are learning. या most training program जो है उसमें आप कुछ सीखते नहीं है, वो क्यों है? कल ही मेरे सेकेंड जो MDRT की जो बैच है एजेंट्स की, कल मैंने ऐसे ही छोटा सा मतलब सबसे एक बार एक व्यू लिया, फीडबैक लिया, और अभी ऑलमोस्ट 30 सेशंस उनके हो गए हैं. और मैं बहुत ही खुश हुआ. इसलिए खुश हुआ बिकॉज ये लोगों का सबका बोलने का और एक बात करने का तरीका ही चेंज हुआ है. शरद मौर्य जी ने बताया, और मैं आपको डेफिनेटली ये बताना चाहूंगा कि आप कोर्स ज्वाइन करते समय आपका एक फोटो निकाल के रखो और फिर 1 साल के बाद आप फोटो निकालो. ये शरद जी के बाद एकदम पक्की है. क्यों? क्योंकि आपका जब साइकोलॉजी चेंज होता है, आपका जब माइंडसेट चेंज होता है, आपके सर के ऊपर इसके ऊपर जो लाइंस है वो चेंज हो जाते हैं. आपका पूरा जो है ना एक अलग भनक आ जाता है, और वो आपका वो फोटो में जो 1 साल के बाद आप फोटो निकालेंगे उसमें दे. तो इसका साइकोलॉजी क्या है? देखो, आप खाली लेक्चर अगर सुनेंगे, मतलब कोई यूट्यूब का वीडियो अगर आप सुनेंगे, तो आपका लर्निंग सिर्फ 5% होता है. बट वो यूट्यूब के साथ अगर आप कुछ टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं जिसमें नोट्स दिया हुआ है, तो आपका लर्निंग जो है वो 15% होता है. अगर आप पीपीटी वगैरह साथ में कुछ वीडियोस पीपीटी आप देखते हैं ना, तो आपका टोटल 35% लर्निंग होता है. डेमोन्स्ट्रेशन जब आप देखते हैं तो आपका 30% होगा. तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे बड़ी चीज है कि हम डेमोन्स्ट्रेशन बहुत सारे करते हैं. उसको रोल प्लेस हम कहते हैं कि जो भी आप जाके मार्केट में रिक्रूटमेंट करना है उसके लिए पूरा स्क्रिप्ट तो वो पूरा मतलब नॉर्मली लोग बोलते हैं रिक्रूट करो रिक्रूट करो रिक्रूट करो, बट क्या करना है, कैसे करना है, ये कोई बताता नहीं. तो यहाँ पर आपको हर चीज का टोटल स्क्रिप्ट दिया जाएगा. आपको एजेंट से बात करने का स्क्रिप्ट दिया जाएगा, रिक्रूटमेंट का स्क्रिप्ट दिया जाएगा, एजेंट को मैनेज करने का स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, और उसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन होगा. उसके बाद जो है वो कहते हैं कि अगर आप अगर समझो डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट, तो आपका 50% एब्जॉर्ब होता है. शरद मौर्य जी ने आपको बताया कि हमारे बैच में आपका मास्टरमाइंड ग्रुप रहेगा जिसमें अलग अलग एरिया से अलग अलग परफॉर्मेंस के अलग अलग लोग एक साथ रहेंगे. और वो लोग जब आप लोग जो सेशन में होता है, तो एवरी वीक आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, तो आप लोग वही कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. मैंने क्या समझा, मुझे क्या लगा, या मेरे एक्सपीरियंस क्या हो गए, मैंने ऐसा किया फिर ऐसा हो गया. तो आपका ये जो डिस्कशन कॉन्सेप्ट जो है ना, उसके वजह से आपका 50% लर्निंग होगा. एंड प्रैक्टिस बाय डूइंग, तो हम असाइनमेंट्स देते हैं. वो असाइनमेंट में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको हर वीक का डेटा देना पड़ेगा, बहुत सारा चीज हम लोग करेंगे.
तो उसमें आपका प्रैक्टिस होता है और फाइनली आप वही चीज काफी सारे इसमें से जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आप एजेंट को भी पढ़ा सकते हैं, तो आपका 90% लर्निंग होगा। तो ये पूरा जो हमारा बैच जो प्रोग्राम है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है इस वजह से अभी ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया रहेगा, बट एक बार वेरी क्विक जिन्होंने पढ़ा नहीं है कि डिफरेंस क्या है कोर्स ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली अभी ट्रेनिंग जो मार्केट में 2 दिन के 3 दिन के हैं या 6 महीने के हैं, बट पर वीक एक सेशन हमारा फुल 45 वीक्स 45 सेशंस एक साल में रहेगा। ये बहुत लंबा समय है क्योंकि कुछ भी चेंज अगर होना है तो उसमें आपको प्रेशर में बहुत समय रहना पड़ता है, तभी फिर डिफरेंस होता है। मोटिवेशन अभी ये पूरा वर्ल्ड ये जान गया है। आज मैं एक कुछ देख रहा था कि मोटिवेशन ये सब हम्बग है, कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन से एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ना, सक्सेस को रिग्रेस कर रहे हैं। सक्सेस को हम रिग्रेस कर रहे हैं बिकॉज मोटिवेशन देके शॉर्ट टर्म कुछ करवा के लेके लॉन्ग टर्म में कोई भी ऐसा ये होता नहीं है। तो ओनली इंफॉर्मेशन, हाई मोटिवेशन, नो इम्प्लीमेंटेशन जो आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो हमारे यहाँ आपको मोटिवेशन लेस रहेगा, इंफॉर्मेशन हाई रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन भी हाई रहेगा। हमारा जो टॉपिक्स है वो काफी विस्तार में हेल्थ से रिलेटेड, एजेंट से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। मैं नेक्स्ट सेशन में जो सेकंड सेशन है उसमें आपको फैमिली मीटिंग करना पड़ेगा, और जब तक फैमिली का आपका एक्सपेक्टेशन सेट नहीं हो, जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी और फैमिली के तरफ से अगर आपका मतलब जो रिलेशनशिप है वो एकदम तालमेल अगर नहीं रहेगा तो देन अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो आपको बच्चों के साथ कैसे क्या डील, एक ही मीटिंग में सब सेट हो जाएगा। हमारे पिछले बैचेस में डेवलपमेंट ऑफिसर, एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, मुझे याद नहीं है, बट वो कह रहा था कि सर हमको बच्चों को सवेरे 7 बजे उठाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। बट जैसे हमने ये फैमिली मीटिंग कर ली, अगले दिन से बच्चे जो है 7 बजे बराबर उठ के तैयार होके अपना, तो और इवन कोरोना के टाइम पे पिछले साल पूरे फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर और उनको एक्सपेक्टेशंस करके वो पूरा एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। वो सेशन के बाद सबसे पहले आपको आपका फैमिली का एक्सपेक्टेशन को सेट करना है, उसके बाद आपको आपके एजेंट के साथ मीटिंग लेके उनका एक्सपेक्टेशन सेट करना है, उसके बाद आप ब्रांच मैनेजर के साथ मीटिंग करेंगे, उनके साथ आप एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे, ताकि आपके जो अराउंड जो लोग हैं जो एक्चुअली अक्सर मैं जैसे कौशिक सर ने बताया कि हम क्या है पॉपुलर मैनेजर है। पॉपुलर मतलब दूसरा जो चाहता है वो हम करते हैं, हमको जो चाहता है वो दूसरा, हम जो चाहते हैं ना वो हम दूसरे से करा के नहीं लेते हैं। तो ये जब आपका फैमिली मीटिंग होगा, एजेंट के एक्सपेक्टेशन मीटिंग होगा, ब्रांच मैनेजर के एक्सपेक्टेशन, तो आप उनके साथ बैठ के आपका एक्सपेक्टेशन पूरा सेट करेंगे, ताकि उनको भी पता चलेगा कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गो अहेड विद। हमारे बाकी अगर ट्रेनिंग में आप देखेंगे ना, एब्सोल्यूट टूल्स है। आज का जो समय है वो ऐसा है कि आप मिनिमम वर्ड्स में आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, बट कुछ ट्रेनिंग कंपनीज है जो टूल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े बुक्स बना रहे हैं। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क। लोगों को टाइम नहीं है। आपको 2 मिनट नूडल, 2 मिनट जैसा कुछ आपके पास होना चाहिए, जो हमने FR ऐप में आपको मतलब करके दिया है। तो रिक्रूटमेंट के लिए FR ऐप यूज करना है, कंट्रोल शीट है, वीडियो कोर्स है, टेलीफोन स्क्रिप्ट है, मीटिंग स्क्रिप्ट है, इंडक्शन स्क्रिप्ट है। फिजिकल और डिजिटल रिक्रूटमेंट आप करेंगे तो कैसे अलग करना है। मॉनिटरिंग कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में होता नहीं है। हम आपका वीकली मॉनिटरिंग करेंगे, आपने कितना कॉल किया, कितना मीटिंग किया, कितना URN जनरेट किया, कितना कोड किया है और इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं है। हमारे यहाँ जो मास्टरमाइंड ग्रुप रहेगा 7-8 पार्टिसिपेंट का रहेगा, वीकली फॉलोअप रहेगा, मंथली प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वीकली आपका एक्टिविटी मॉनिटरिंग होगा, और आपका परफॉर्मेंस वीकली बेसिस पे आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसका भी हम लोग वीकली आपको ग्राफ देते हैं तो ये जो प्रोग्राम है इसका दिस इज हाउ इट इज, व्हाई इट इज डिफरेंट। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप इमीडिएटली चैट में आप लोग सब डाल दीजिए। अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इफ यू डू रेगुलरली over a long period of time will make a tremendous impact on your income, ऐसा एक चीज क्या है, एक एक्टिविटी क्या है जो आप कंसिस्टेंटली रेगुलरली लंबे समय तक करेंगे तो आपका इनकम बहुत ही बढ़ सकता है? क्या है एक्टिविटी? फटाफट फटाफट। हेलो हेलो प्लीज टाइप। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो रिक्रूटमेंट। नाउ अगर मैं ये रिक्रूटमेंट है, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग एवरीबॉडी नोज,
मुझे वो बताने की जरूरत नहीं, या बाहर कोई ट्रेनर आपको बताने की जरूरत नहीं, यू नो इट वेरी वेल, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट अगर मैं ये कहूँ आपको कि okay, so recruitment is what all of you will say, but अगर मैं ये पूछूं how much time do we spend on recruitment, तो अगर आप आंसर देखेंगे तो normally it will be 10% on average, तो इसलिए because you are not doing the right things, बाकी आप क्या करते हैं? मुझे क्या लगता है कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स आर वेरी बिजी डूइंग नथिंग। आई एम सॉरी, आई एम नॉट मतलब saying that you all are not working hard, you all are working bloody very hard, but it doesn't matter, कितना hard आप work काम कर रहे हैं, it doesn't matter unless you are doing the right thing, okay, you are not effective। तो therefore effectiveness मतलब direction, doing the right thing comes first, आपका direction एकदम proper होना चाहिए। efficiency means quality, doing things right, तो पहले तो राइट चीज आपको करना है, उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं ना वो सही ढंग से करना है, तभी आपका एक्सेलेंस हो पाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, आप लोग है ना ज्यादा अर्जेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सब जगह आग लगी है और इसके लिए अर्जेंट, तो आपका इंपॉर्टेंट आप लोग भूल रहे हैं, एंड व्हाट आर द 8 P's ऑफ रिक्रूटमेंट। एक तो पर्पस है, आपका स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए, जो हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कैसे करना है। सेकेंड, आपको प्रोफाइलिंग करना चाहिए। लोग है ना दो प्रकार के रहते हैं, एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है और दूसरा टास्क ओरिएंटेड पीपल ओरिएंटेड। तो अगर आप इंट्रोवर्ट टास्क ओरिएंटेड को एजेंट बनाएंगे तो वो तो मतलब कितना भी उसको मार मुर के ट्रेनिंग में बेच के कुछ भी करेंगे, उसके डीएनए में सेलिंग और ये सब नहीं है। तो आपको ऑलवेज क्या करना चाहिए, बेस्ट जो आपका एजेंट होगा वो एक्सट्रोवर्ट पीपल ओरिएंटेड रहेगा। और ये कैसे सिलेक्शन करना है, ये ग्राफोलॉजी के माध्यम से आप आपके कैंडिडेट को एक पेज लिखने बोलेंगे और वो लिखा हुआ पेज से आप डिसाइड करेंगे कि उसका प्रोफाइल क्या है, या हम आपको ये प्रोग्राम में बताएंगे। 3 ईयर का जीओआईबी प्लान काफी लोगों ने आप लोगों ने अटेंड कर लिया है। आपको आपका जो जीओआईबी है, आपका जो आईबी है, वो नए एजेंट के साथ मतलब कितना आईबी कमाने के लिए कितने नए एजेंट मुझे रिक्रूट करना है, इसका कोई अता पता रहता नहीं है। तो हम आपको साइंटिफिक वे से इसका कनेक्शन बता के देंगे। फिर आपको मल्टीपल स्ट्रेटेजीज आपका होना चाहिए, सिर्फ एक ही वे से आप अगर रिक्रूटमेंट करेंगे तो नहीं चलेगा। आपके पास 250 का फनल होना चाहिए, आपके पास इनोवेटिव स्क्रिप्ट होना चाहिए, और ये सब अलग वे पाथवेज आपके पास 4-5 अलग अलग तरीके से आपके पास एजेंट रिक्रूट होना चाहिए। दूसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। अगर मैं कहूंगा मेरे को 100 एजेंट करना है तो होना चाहिए, बट ये किसी को भी पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है क्योंकि कोई रिकॉर्ड रखता नहीं है। तो हम लोग आपका जो डेटा है, रिकॉर्ड है, वो रखना चालू करेंगे। पिछले मेरे दोनों बैचेस से मुझे ये पता चला है कि एक एजेंट एवरेज एक डेवलपमेंट ऑफिसर अगर 30 कॉल करता है तो हर 30 कॉल के पीछे उनका एक एजेंट रिक्रूट हो सकता है। ये मेरा डेटा का एनालिसिस है, जो किसी को पता नहीं है, किसी ने वो रखा नहीं है, बट क्योंकि 120 डेवलपमेंट ऑफिसर का डेटा पिछले 1 साल का एनालाइज करने के बाद मैं वो एनालिसिस, डेटा एनालिसिस से पता चला है कि अगर आप 30 कॉल करेंगे तो आपको एक रिक्रूटमेंट होता है। तो आपको 100 अगर रिक्रूटमेंट करना है तो पूरे साल में 3000 अगर आप फोन करेंगे तो आपका 100 रिक्रूटमेंट होना ही चाहिए। इसको हम प्रेडिक्टेबल कहते हैं। फिर प्रॉमिस, क्या जब हम एजेंट को रिक्रूट करते हैं ना, उसको ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, उसको मतलब ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करना चाहिए। एंड द 7th P इज प्रेपरेशन। क्या होता है ना, हम लोगों को बहुत गुड़ी चीज बताते हैं, बहुत बड़ा अच्छा पिक्चर बताते हैं, इतना कमा सकते हो, ये हो सकता है, उसका गोल सेट करते हैं ना, बहुत बड़ा पिक्चर बनाते हैं। बट एक्चुअली जब एजेंट मार्केट में जाते हैं तो उसकी ऐसी धुलाई होती है कि आपने जो बनाया हुआ पिक्चर है ना, चूर के मतलब ये हो जाए। तो आपको उसको प्रिपेयर करना है कि ये बिजनेस रिजेक्शन का बिजनेस है। तो उसको कैसे करना है, उसको हम इंडक्शन कहते हैं। तो इंडक्शन में आपको एजेंट को कैसे प्रिपेयर करना है रिजेक्शन के लिए, वो बताया जाएगा। एंड फाइनली आपके पास एक पाइपलाइन होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 250, 300, 400 लोगों का कंटिन्यूस आपके पास अगर पाइपलाइन रहेगा, और वो इसलिए नहीं रहता है बिकॉज बहुत सारा ये पाइपलाइन आपका लीक हो जाता है। तो लीकेजेस को अगर आप स्टॉप करेंगे देन यू विल बी वेरी इफेक्टिव इन पर्टिकुलर दिस। अनिल, यू हैड टू आस्क समथिंग। यस, अच्छा, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? अनिल, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, मैं बाद में बोल। ओके, यहाँ तक अगर आपको सबको समझ गया है, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग?
तो कैन यू जस्ट टाइप यस इन द चैट, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड, कि मतलब जो भी अभी मैंने बात किया है दैट यू इट लुक्स यू नो वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी वेरी अप्रोप्रिएट. Very good, very good. Excellent. Yeah, but very few people are excited. I think the rest of you are not excited. Very good, very good. Excellent. Excellent. Okay, good. Very good. Okay, fine. Great. Okay, chalo. So let's move ahead. The next, so what we will be doing is, okay, so next quick topic we will go to. So, okay, so this training, because since today is the inaugural session, so I'm just going over the whatever this is there. So expectations ka we can see it next time, but I will tell you what are the three purposes of this program. Okay, ये program का very clear three purposes. Okay, उद्देश्य जो है इस program का वो तीन है. एक तो एक clear to give you a clear vision of your destination. Normally हमको पता ही नहीं रहता है कि हमको कहाँ जाना है, मतलब अगर आपको पता ही नहीं है तो then you will not go. So what's your clear vision? हमारा प्रोग्राम में क्लियर विजन हम डेवलप करेंगे कि विद इन द नेक्स्ट 3 years आपको टॉप 100 डेवलपमेंट ऑफिसर के लिस्ट में आना है. ओके, दिस इज अ वेरी क्लियर विजन हैज टू बी वेरी बिग. ओके, सो हम लोग ये विजन लेके चलेंगे कि अगले 3 साल के अंदर जो भी आप इंप्लीमेंट करेंगे तो यू विल कम इन द टॉप 100 मेरिट लिस्ट. सेकेंड, आपको ये किया जाएगा कि वो अगर मेरिट लिस्ट में अगर आपको जाना है तो उसके लिए फ्लाइट प्लान होना बहुत जरूरी है. जैसे एक पायलट अगर जो भी फ्लाइट लेके जाता है उसको एवरी टाइम फ्लाइट प्लान, भले वो सेम फ्लाइट अगर उसने 1000 बार भी वो अगर फ्लाइट उड़ान भरी रहेगी तो भी उसको वापस से फ्लाइट प्लान चेक करना पड़ता है. और एवरी टाइम ही स्टडीज दैट फ्लाइट प्लान. और आप अगर देखेंगे कि नॉर्मली जब आप फ्लाइट लेते हैं तो एक ग्राउंड स्टाफ है ना, कॉकपिट में जाके खड़ा रहता है या कभी बाहर खड़ा रहता है, एक नोट ये जो क्लिपबोर्ड उसके पास रहता है. और वो इसलिए रुका हुआ रहता है बिकॉज वो पायलट जब तक फ्लाइट प्लान नहीं पढ़ता है और वो यस नहीं कहता और वो टिक मार्क नहीं करता है तो वो नीचे नहीं उतरता है. और जब तक वो नीचे नहीं उतरता है फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती. तो आपको अगर टॉप 100 में जाना है तो उसके लिए एक पाथ होना चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए. तो वो प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए. और फिर आप ये जब जा रहे हैं ना तो ये आपका बीच में कंपास होना चाहिए जिससे आप चेक कर सकते हैं कि यू आर ऑन ट्रैक और नॉट. आप ऑफ ट्रैक है कि ऑन ट्रैक है वो आपको चेक करना है. तो फर्स्ट जो है वो क्लियर विजन ऑफ योर डेस्टिनेशन है जिसमें GOIB गोल सेटिंग 3 year रिक्रूटमेंट प्लान हम करेंगे जिससे आपका पूरा जर्नी जो है वो डिफाइन हो जाएगा. फिर जो एक फ्लाइट प्लान हम लोग वर्कआउट करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है. So it is vital that you have a flight plan based on principle. ये सिद्धांतों के ऊपर फ्लाइट प्लान होना चाहिए, ऐसे और डेटा के ऊपर होना चाहिए, मेजरमेंट के ऊपर होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, तभी फिर आप इसको ये कर सकते हैं. एंड फाइनली आपके पास एक कंपास होना चाहिए और वो कंपास के जरिए से फिर आप ट्रैक कर सकते हैं. अभी इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है ना कि मतलब जो भी हम प्लानिंग करते हैं क्या वो साइंटिफिक होना चाहिए या अनसाइंटिफिक होना चाहिए. और मुझे लगता है पूरे इंडिया में जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो आप भी समझ सकते हैं इसका ऑब्वियस आंसर क्या रहेगा. प्रोसेस ओरिएंटेड रहना चाहिए कि एड हॉक रहना चाहिए, प्रिडिक्टेबल रहना चाहिए कि अनप्रिडिक्टेबल रहना चाहिए, कंट्रोलेबल रहना चाहिए कि अनकंट्रोलेबल रहना चाहिए, सिस्टम बेस्ड रहना चाहिए कि अनसिस्टमैटिक रहना चाहिए. तो अगर आप देखेंगे अगर आप काम अनसाइंटिफिक, एड हॉक, अनप्रिडिक्टेबल, अनकंट्रोलेबल, अनसिस्टमैटिक अगर कर रहा है तो आपके फ्रेंड जो है ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस और ये सब आपका फ्रेंड्स हो जाता है. और अगर आप साइंटिफिक, प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रिडिक्टेबल, कंट्रोलेबल, सिस्टम बेस्ड अगर आप काम करेंगे यू विल बी फ्री, यू विल बी वेरी स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेसलेस एंड यू विल आल्सो बी वेरी हैप्पी. तो मतलब स्ट्रेसलेस होना चाहिए कि स्ट्रेसफुल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए कि अनकंसिस्टेंट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेसिस होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म होना चाहिए, रेप्लीकेबल होना चाहिए कि उसको रेप्लीकेट नहीं करेंगे ऐसा होना चाहिए, स्केल अप करने को होना चाहिए कि स्केल अप नहीं करने को होना चाहिए. तो ये मतलब आपका, मेरे को पता है कि सब लोग क्या है ना, हम चाहते तो है बट कोई करता नहीं है. इंपॉर्टेंट वो है क्यों, क्योंकि आपको कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन देने वाला नहीं है, कोई ऐसा
एक प्रॉपर जैसे बोलते हैं ना प्रॉपर वे से एक सिस्टमेटिक वे से आपको जो बताना है, तो आपका जो बिजनेस और आपके जॉब और बिजनेस के बारे में और रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी आपकी नजरिया जो है वो हम चेंज करेंगे। तो ये 1 साल में आपका पूरा दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा, आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, पूरे मतलब आपका एजेंट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, हर चीज के बारे में आपकी जो नजरिया है और आपका जो माइंडसेट है ना वो चेंज हो जाएगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जब ये चेंज होता है ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस होता है, ऑटोमेटिकली आपके एजेंट परफॉर्म करने को चालू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके एजेंट को बिजनेस मिलेगा, सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव अगर चेंज होता है ना। और आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, बिजनेस में एक क्रिएटिव इनोवेटिव अप्रोच हम लाएंगे, राइट। और ये मतलब ऑलरेडी प्रूवन पॉइंट है, 2 बैच हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो नाउ यू आर एक्चुअली गेटिंग, जब फर्स्ट बैच ज्वाइन किया था मुझे भी मतलब ये फर्स्ट टाइम मैं 1 साल का प्रोग्राम कर रहा हूँ। डिजाइन तो साइंटिफिक है बट उसको एक बार एक राउंड जब तक नहीं करेंगे पता नहीं चलता है। सक्सेसफुली हम लोग वो किया है, तो एक क्रिएटिव इनोवेटिव अप्रोच आएगा, आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। So what I only want to tell you is don't expect any miracles, कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, कोई इजी वे नहीं मिलेगा, कोई इमीडिएट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे और कोई क्विक फिक्स आइडियाज नहीं रहेगा, अमेजिंग रिजल्ट्स आपको एकदम नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्या है कि अगर आपको क्विक फिक्स रिजल्ट चाहिए तो मुझे एक फार्मास्यूटिकल शॉप खोलना पड़ेगा और उसमें गोली निकाल, मतलब एक गोली आपको अगर मैं टैबलेट्स देता हूँ कि ये करो और आपका 100 रिक्रूटमेंट होगा, तो फिर वो मिरेकल है, बट वैसा मिरेकल कोई हमारे यहाँ होगा नहीं। बट यस, आपका मिरेकल आप लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त मिरेकल्स आप ये करेंगे। तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, you should expect innovative creative solution, system and process oriented approach, sustainable consistent method, predictable recruitment system and scientific robust systems। हम आपको प्रॉमिस क्या करते हैं कि एक आपको स्ट्रेसलेस लाइफ रहेगा, हाई लेवल आपकी रिक्रूटमेंट एक्टिविटी हो जाएगी, पीसफुल एंड काम लाइफ रहेगा, हाई लेवल ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस रहेगा और प्रिडिक्टेबल सक्सेस विद बैलेंस लाइफ जो हमारा टैगलाइन है वो आपको मिल जाएगा। आपका प्रॉमिस क्या होना चाहिए, दैट यू शुड अटेंड ऑल दी सेशंस विदाउट फेल एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम सिचुएशंस। हमारा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो देयर इज ऑल रिकॉर्डिंग्स आर केप्ट फॉर 1 फुल ईयर, तो आप वापस जाके वो देख सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि आप मास्टरमाइंड मीटिंग अटेंड करेंगे और आपके जो मास्टरमाइंड लीडर है उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, जो भी असाइनमेंट्स दिया गया वीकली वो आप कंप्लीट करेंगे, जो भी डे वाइज प्लानिंग आपको दी है वो आप रिलीजियसली करेंगे, और जितना नंबर ऑफ कॉल और मीटिंग रिक्रूटमेंट के लिए जो हम बताएंगे एकेडमी की तरफ से वो आपको कंप्लीट करना है, राइट। तो वो अगर आप करेंगे तो आपका मतलब एक बेसिक ओवरव्यू मैं देना चाहता था। तो अभी चलते हैं हम लोग जो मेन शो है हमारा उसके तरफ हम चलते हैं कि प्राइमरली जो लर्निंग है वो कैसे होता है और लर्निंग हाउ डू वी लर्न, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है ये लर्निंग कर्व है, इसको लर्निंग कर्व कहते हैं। तो लर्निंग कर्व में 4 स्टेजेस है, ओके। फर्स्ट वाला स्टेज को हम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, सेकेंड वाले स्टेज को कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, थर्ड वाले स्टेज को कॉन्शियस कॉम्पिटेंस कहते हैं और फोर्थ वाले स्टेज को अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस कहते हैं। तो ये 4 स्टेजेस है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस एंड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ओके। तो अनकॉन्शियस का मतलब क्या है कि मुझे पता नहीं है। जब आप लोग आज यहाँ पर आए हो तो आप लोगों को एफआरएफ से इंश्योरेंस बोलने बिगर, सेलिंग बोलने बिगर, एजेंट को कैसे रिक्रूट करना है वो आपको पता नहीं है, तो आप अनकॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियस मतलब आपको पता नहीं है, इनकॉम्पिटेंट मतलब आप कर नहीं सकते। तो फर्स्ट स्टेज है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, पता नहीं, कर भी नहीं सकते। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको पता चलेगा बट आप फिर भी इनकॉम्पिटेंट रहेंगे, मतलब आप कर नहीं सकते हैं, ये सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में आप कर भी सकते हैं और आप आप जानते भी हैं और कर भी सकते हैं। और फोर्थ स्टेज जो है वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है। तो अनकॉन्शियस, अगर हम कॉन्शियस मतलब पता है, तो फोर्थ स्टेज में अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस क्यों बोला गया है? कैन एनीबडी जस्ट क्विकली शेयर? यू कैन जस्ट अनम्यूट। यस सर। हैबिट बन जाती है। हाँ, हैबिट बन जाती है, राइट राइट। ये करना एकदम ऐसा होता है कि ये मेरा सबकॉन्शियस लेवल में चला जाता है और वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, जो हम लोग कर नहीं पा रहे।
Correct, correct. So this becomes your, it's called involuntary. Action becomes involuntary. Involuntary. ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है. जैसे अगर मैं कार ड्राइविंग का, अगर मैं कार का सीखने को जाऊं, कार ड्राइविंग, तो फर्स्ट मैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में रहता हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है कार कैसे चलाना है, और फिर वो ड्राइवर आता है मेरे से बाजू में बैठता है और वो मेरे को सिखाता है कि मतलब ये स्टीयरिंग व्हील है, ये गियर है, ये क्लच है, व्हाटएवर, वो सब जब बताता है, तो बताने के बाद हम कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में चला जाते हैं. तो दैट टाइम वी कांट टेल द ड्राइवर ठीक है, ओके अभी हम ट्रेनर को क्या अभी ठीक है, हम मतलब हम चला लेंगे अभी, राइट? नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि हमको अभी जानकारी मिली है, बट एक्चुअली हमको उसका प्रैक्टिस नहीं है. तो वो क्या करेगा, फिर वो गाड़ी को बताएगा कि न्यूट्रल में डालो, फिर गाड़ी को चालू करो, फिर क्लच एक पैर से दबाओ, फिर फर्स्ट गियर में डालो, फिर धीरे से क्लच को छोड़ के एक्सेलेरेटर को दबाओ. ऐसा करके मतलब बहुत बार गाड़ी है ना ऐसे जर्क मार के रुक जाती है, क्योंकि हमारा दोनों पैरों का संतुलन जो है वो वहां पर नहीं बैठा रहता है. एंड देयरफॉर कुछ समय बाद हम लोग कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में जाते हैं, फिर जो गाड़ी है वो चलने लगती है. बट मुझे ये बताओ कि गाड़ी जो चलने लगती है, क्या हम लोग डायरेक्ट इसको हाईवे पे लेके जाते हैं? नहीं लेके जा सकते, राइट? तो हम क्या करते हैं कि जब हमको थोड़ा गाड़ी बढ़ने लगता है आगे, तो हम ऐसे गली में जाते हैं, ऐसे रोड में जाते हैं जहां कोई भी रहता नहीं, इवन भूत नहीं रहेगा, वैसे जगह पे जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम अभी गाड़ी चला रहे तो खाली अंदर देख रहा है, बाहर देखने के लिए हमको टाइम ही नहीं रहता है ना. और फिर ऐसे प्रैक्टिस कर करके फिर उसके बाद हम हाईवे पे लेके जाएंगे. 2-3-4 महीने में हम लोग अगर समझो किसी से बात भी कर रहे हैं या कुछ कार में बैठ के बात कर रहे हैं, तो भी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप अलग अलग जगह पे जाते हैं ना. अब डी हॉक क्या कहता है ना, प्रॉब्लम इज नॉट हाउ टू गेट इनोवेटिव थॉट्स इनटू योर माइंड, बट हाउ टू गेट द ओल्ड वन आउट. कि आपके ऑलरेडी जो ओल्ड आपका जो माइंड में जो नॉलेज है या जो आइडियाज है या जो माइंडसेट है, उसको कैसे निकालना, वो ज्यादा डिफिकल्ट है. ओके, सो हम लोग अभी एक क्लिपिंग देखेंगे जिसका नाम है वो कराटे किड फिल्म से है, जिसमें एक लड़के को बहुत पिटाई होती है, तो वो अब एक गुरु के पास जाता है अपना कराटे सीखने के लिए. तो ये क्लिपिंग आप देख लो और फिर उसके बाद में कुछ आपको क्वेश्चंस पूछूंगा. तो एक सेकंड में जरा वो ओके, तो लेट्स मेरे को खाली आवाज आ रहा है कि नहीं जरा बता दो, एक सेकंड. आ रहा है. आ रहा है ना आवाज? ओके, 1 मिनट. बट वीडियो नहीं दिख रहा है ना. वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? अभी तक नहीं. नहीं आ रहे. अभी तक नहीं. ओके, अभी अभी है एकदम. ओके. First wash all the car, then wax. Remember, dear, no question. Yeah, but Right? Wax on, right hand. Wax off, left hand. Wax on, wax off. Breathe in through nose, out the mouth. Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Hey, where these cars come from? Wax on. Detroit. Wax off. Wax on. Right hand, make a circle. Wax off. Left hand, circle. Wax on. Wax off. Breathe in.
अभी देखो वो कराटे सीखने गया था, तो जरा उसके ऊपर ध्यान रखो कि कराटे सीखने गया था। Hey, Mr. Miyagi, you're finished. Hey, you want to check these out? Bongos? I get it. You what humor? What are these? Japanese sandal. What do you do with them? Funny you should ask. Right the circle. Left the circle. Hey, what do you usually go back and forth? But you go circle. Right the circle. Left the circle. Right the circle. Left the circle. Breathe in, breathe out. Right the circle. Left the circle. Right the circle. Now. All the floor. Right the circle. Left the circle. Right circle. Left circle. Window go. I'm finished. Mr. Miyagi, feet, shoulders. Good. Go home, get rest. Come morning. Oh, Daniel sir. Very good job. Come morning, start early. अभी उसके पूरे इसको पेंट करने का काम दिया उनको। Ever think of that? तो वो भड़क जाता है कि I'm beating you goddamn slave is what I'm beating, आप man. कराटे नहीं सिखा रहे, सब काम करके ले रहे So हैं। you're supposed to teach and I'm supposed to learn, remember? For 4 days, I'm supposed to my ass and I learned the goddamn thing. Plenty. I learned plenty. I learned how to sand your decks, maybe. I wash your car, paint your house, paint your fence. I learned plenty, right? Not everything is a sin. Oh, bullshit. I'm going home, man. Daniel sir. Daniel sir. What? Come here. Hey. Wax on, wax on. Wax on, wax on. Hey. Wax on, hot. Wax off. Concentrate. Look at my eye. Look at hot. Come inside. Wax on, hot. Wax off. Hot. Wax on, hot. Wax off. Hot. Wax on. Wax off. Up. Down. Up. Down. Other side. Look eye. Always look eye. Show me paint the house. Side. Back to list. Side. Yes. Show me wax on, wax off. Cat! Show me interface. Cat! Okay, so I just want to ask all of you very quickly. You can unmute. कि आपको इसमें क्या सीखने मिला? What did you learn from this clip? Quickly, come on, fast. Anybody? Hello. We need to prepare ourselves. We need to prepare with a system. Okay, you have to prepare yourself. Very good, excellent. Yes. Practice, yes. Yes, come on, just unmute quickly. Balaji,
भानु प्रताप, देवाशीष, धीरेन्द्र, ध्रुव. Yes, बालाजी. वही करना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना. ओके, सो बालाजी बोल रहा है कि खुद का दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो बताया गया जो कहा है वही करना है, खुद का Yes, दिमाग okay. नहीं लगाना है. Very good, very good, excellent, excellent. Yes, Anil, Not to question. follow the instruction, no question asked. Very good, yes, very good, excellent, Balaji. Yes, yes, Anil, Kiran, follow the instruction, no question. Very good. Okay, so primarily मतलब have faith on the teacher. Yes, and this. So primarily क्या है कि आपको सिर्फ blindly follow करना है, and step by step जो बताया गया है उसका पूरा result. शायद आपको लगेगा कि ये क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है, वैसे क्यों करना है, इससे क्या होगा. तो आपको वो जो end result है, वो end result आपको शायद पता नहीं है, but primarily मतलब उसको आपको उसी प्रकार से आप अगर follow करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो है वो सेटअप जो है वो हो जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल क्विकली टेक यू थ्रू व्हाट आर द बेसिकली ये जो प्रोग्राम है इसका क्या रहेगा. तो ऑब्जेक्टिव क्या है ना, एटलीस्ट 50 एजेंट्स आपको एक साल में रिक्रूट करना है, आपका हेल्थ और वेलनेस इंप्रूव करना है, सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम, रिक्रूटमेंट के लिए ज्यादा समय आपके पास कैसा आ सके वो देखना है, आपके एजेंट को ऐसा ऑर्गेनाइज करना है कि वो बेटर परफॉर्मेंस हो जाए, और आपको एक एज अ कंपनी बनना है, एक एंटरप्राइज बनना है. तो काइजन का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. अगर हम 1% चेंज करेंगे पर वीक, एक हैबिट ऐड करेंगे पर वीक, एक बुक अगर हम पर मंथ पढ़ेंगे और एक एंटरप्रेन्योर मूवी अगर हम पर मंथ करेंगे, तो हमारा जो है वो 52% का चेंज ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में हो जाता है. तो ये क्लासेस जो हमारे ऑलमोस्ट जैसे एवरी सैटरडे 5 to 7 रहेंगे, 120 मिनट्स के क्लास रहेंगे. इसमें वीकली मॉनिटरिंग वगैरह जो ऑलरेडी मैंने बताया, इसमें अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, आर्ट और डेवलपमेंट ऑफिसर्स का एक ग्रुप रहेगा जिनको 40 मिनट का एक कॉल हर थर्सडे को उनको एक मीटिंग करनी पड़ेगी. ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज मिलेगा, बट जनरली इट विल बी ऑन इम्प्लीमेंटेशन. 100 रिक्रूटमेंट का गोल लेके हम लोग चलेंगे. आपका बिजनेस प्रोक्योरमेंट किधर भी मतलब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और आपको बीसीजी मॉडल जो है एजेंट मैनेजमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करना है. फिर एंटरप्रेन्योर टाइम मैनेजमेंट सिस्टम, फैमिली मैनेजमेंट सिस्टम, एजेंट मैनेजमेंट सिस्टम, रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड एंटरप्राइज मैनेजमेंट, और काफी सारे ये टॉपिक्स है, ऑलरेडी आपको वो बताया गया है. तो यू कैन हैव अ लार्ज चॉइस. तो रिक्रूटमेंट का फनल है, जो डॉक्टर प्रोसेस है, हम लोग डॉक्टर प्रोसेस यूज करने वाले हैं. 7 स्टेप डॉक्टर प्रोसेस, सेल कॉम्पिटेंस, सेल अपॉइंटमेंट, सेल प्रॉब्लम, सेल सोल्यूशन, सेल एजेंसी, कलेक्ट रेफरेंस. ओके, आपको अगर सेलिब्रिटी मैनेजर बनना है, टॉप 100 के मेरिट लिस्ट में आना है, तो आपको ये अलग 7 स्टेप्स को कवर करना पड़ेगा. जो 6 स्टेप्स है, सेल ट्रस्ट, सेल अपॉइंटमेंट, सेल प्रॉब्लम, सेल सोल्यूशन, सेल एजेंसी एंड कलेक्ट द रेफरेंसेस. तो इसका बेसिकली 26,500 प्लस 4,050 जीएसटी है. इसमें आपको स्काइलिंग करके 40 वीडियोस का, स्काइलिंग का वीडियोस आपको फ्री लाइफ लॉन्ग एक्सेस मिलेगा. आप 6 इंस्टॉलमेंट में ये भर सकते हैं. प्लस आपको लाइव जो सेशंस रहेंगे अलग 40 वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसमें नॉलेज और स्किल के रिलेटेड है, और जो माइंडसेट और साइकोलॉजी के रिलेटेड हम ऑनलाइन सेशंस करेंगे, जो आपको 45 सेशंस में जो रहेगा, 2 घंटे का सेशन ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे रहेगा, बीच बीच में कुछ हॉलीडेज भी रहेंगे. और आपका जो पेमेंट है वो 4,000 बेसिक करना है, फिर 5,300 एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ. सिंगल इंस्टॉलमेंट करना है तो 27,600 है. इसी प्रकार से. तो अभी मैं चाहूंगा कि कोई अगर आपको क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई many of you already joined, so thank you very much for that. अभी नेक्स्ट जो सैटरडे रहेगा उसमें क्लास नहीं रहेगा. नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग डायरेक्ट अभी 2 अक्टूबर को मिलेंगे. बट मैं चाहूंगा कि जितने लोग कोर्स ज्वाइन किया, ये ब्रेक में इसलिए दे रहा हूँ कि स्काइलिंग वाला वीडियो चैप्टर नंबर 1 2 3 आपको कंप्लीट करना है. चैप्टर नंबर 1 2 3. ओके, सो ऑल दोस पीपल हु ऑलरेडी ज्वाइन, I hope. Jason, have you completed seeing the video, Jason? Yes, Lazarus. How many sessions you saw? Yeah, nearly completed that.
Nearly completed. Okay. So when you have seen these videos, what is your experience? What did you learn from that? This works out to be simpler provided You are very soft. Just increase your voice. it works out provided we practice it daily. That is required. Correct. No, but you know the whole philosophy of that. How did you find? Is it different? It is really it's a very like a holistic approach philosophy which actually we have to do. Which Right. that is have to be practiced. Yeah, that will happen with practice. But the first thing is when you saw the videos, how did you find it in terms of The doctor's process, which you say is absolutely required in our system also. Suddenly, we don't follow this process. We just go casually. But if you follow that religiously, I think it is really very helpful. Correct. So thank you very much. So what I would request all of you is please, you know, Ashish will be in touch with you. अच्छा, जो लोग आज आए हैं, can you just put your name and number in the chat, please, quickly? So you know we can just identify. Just put your name and number in the chat. So you know your attendance we can mark. So we mark attendance in the chat. So please put your name and number in the chat, and then we can, you know, this thing. Okay. Any other questions anybody has? Please, everybody type your name and number, because if your video doesn't have the name, जैसे HP है, तो we will not know. But anyway, you at least type your number. We will, you know, we will have the, yeah. Any other question? Any doubt? Any difficulty? और आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा, ऐसा चुप बैठ के नहीं चलेगा. You will have to be very highly interactive. Yes, अनिल, अभी आप बोल सकते हैं. अनिल, मिस्टर आशीष, बालाजी ने बात किया, भानु प्रताप, जानकी राम, देबाशीष, ध्रुव, किरण वाघ. Yeah, any questions, any doubts? Shilpa, Sudhir Pawar, yeah, Sandeep, Ravi Shinde, Rajkumar. Yes, any question, any doubt? Yeah, please type your name and number. Hello. हाँ, हेलो. हाँ सर, रवि शिंदे बात कर रहा हूँ. हाँ, बोलो रवि. ये पूछना था कि इसमें रिक्रूटमेंट जो मेन फोकस दिख रहा है, तो इसके साथ साथ एजेंसी मैनेजमेंट यानी एजेंट मैनेजमेंट जो है, इसके ऊपर भी फोकस रहेगा, उस बारे में. कौशिक जी, थैंक यू. कौशिक जी, थैंक यू वेरी मच. या हाँ, बेसिकली हम 2 ट्रैक पे चलेंगे. क्या होता है ना, खाली रिक्रूटमेंट करके नहीं चलेगा ना. ऐसा मतलब क्या होता है कि बच्चे पैदा करके उसको रास्ते पे रखेंगे, रास्ते पे ये करेंगे तो नहीं चलेगा. सो एक्चुअली क्या है कि बासव जी, tomorrow today again we are having a session at 7:30, so I'll be free only tomorrow. You can call me. तो बेसिकली क्या है ना, खाली रिक्रूटमेंट करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हमको IB बिजनेस से मिलता है, राइट. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिक्रूटमेंट, बट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही ऐसा रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है. तो मैं हमेशा, जैसे कल BITV का इसमें मैं बोल रहा था ना, हमारा प्रोसेस ही जो है ना, वो एजेंट को फेलियर बनाता है. तो आपका प्रोसेस जब आप करेक्ट करेंगे तो एजेंट एकदम सक्सेसफुल होगा. और उसके लिए हम BCG मॉडल करके बताने वाले हैं आपको कि एजेंट को 4 क्वाड्रेंट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको बेबी, स्टार, कैश काउ और डॉग, ऐसे 4 क्वाड्रेंट में आप डिवाइड करेंगे. उनको ट्रेनिंग अलग अलग करेंगे, उनका यूनिट मीटिंग अलग रहेगा, वो सब आपको बताया जाएगा एकदम. मतलब आप क्या करते हो ना, सब एजेंट को इक्वली ट्रीट करते हो. तो काइजन का प्रिंसिपल है, अगर आप सबको इक्वली ट्रीट करेंगे ना, इफ यू ट्रीट एवरीबडी इक्वली, यू आर एक्चुअली ट्रीटिंग देम अनइक्वल. तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि सबको अनइक्वल कैसे ट्रीट करना है. नो, सबको इक्वल नहीं ट्रीट करना है, सबको अनइक्वल ट्रीट करना है. तो वो अनइक्वल ट्रीट करने के लिए उनको 4 बकेट्स में हम डालेंगे. वो एक बकेट के साथ अलग अलग आप कुछ कार्यक्रम करेंगे, वैसे ही नो ये होगा. Yes, that was a good question. Yes. Anybody else? Any other question? और आपका ये रिकॉर्डिंग जो है, जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, उनको ये वीक में हम रिकॉर्डिंग का एक्सेस ओपन करके देंगे.
आपको स्काईलिंक में ही ये वीडियोस मिलेगा। ओके, स्काईलिंक का जो आपको दिया है वीडियो कोर्स, वही स्काईलिंक को आप ओपन करेंगे तो आपको 2 कोर्स दिखेगा, एक काइजन कोर्स करके और एक स्काईलिंक। स्काईलिंक मतलब जो वीडियो कोर्स है, और काइजन कोर्स मतलब हमारा लाइव सेशन है। वो सेशन नंबर वाइज आपको स्काईलिंक में दिख जाएगा। तो विद इन नेक्स्ट 2-3 days वी विल हैव दैट। हेलो सर, मैं अनिल भीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो अनिल। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कोई रिक्रूटमेंट टूल्स रहेगा क्या आपके पास कि जो हम लोग एजेंट को बता के हम लोग में ये कर सकते हैं? यस यस यस, टूल्स रहेगा ना, टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिक्रूटमेंट के लिए टूल्स रहेगा, अलग अलग सेगमेंट से कैसे रिक्रूट करना है उसके लिए अलग अलग टूल रहेगा। कोल्ड कॉलिंग भी रहेगा, नेचुरल मार्केट भी रहेगा, रेफरेंसेस भी रहेगा, टर्मिनेटेड एजेंट्स का भी कैसे उनको री जान उनके अंदर वापस जान डाल के कैसे लेना, ऐसा अलग अलग मतलब प्रोसीजर रहेगा पूरा। और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए कुछ रहेगा क्या? यस यस यस, ऑनलाइन भी रहेगा ना। हम लोग अभी जो पढ़ा रहे हैं सब ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, डिजिटली पढ़ा रहे हैं। मतलब आप भी डिजिटली कर सकते हैं, और डिजिटली आपको सिखाया जाएगा कैसे करना है, और फिजिकली भी आप वही चीज यूज कर सकते हैं। जैसे जो लिंक्डइन का जो कंटेंट होता है या फेसबुक का जो कंटेंट होता है उसके बारे में कुछ यस यस, हम लोग लिंक्डइन और फेसबुक के ऊपर आपको कैसे करना है ना, उसका भी पूरा ट्रेनिंग हम देंगे। एड्स के जरिए से भी आपको करना है, फिर टेलीकॉलर भी रखना है, बट टेलीकॉलर बाद में रखेंगे हम, टेलीकॉलर अभी नहीं रखेंगे। अभी सब आपको पर्सनली करना है ये 3 महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। और उसके बाद फिर हम लोग टेलीकॉलर अगले साल अप्रैल में कैसे रखने का वो बताएंगे, क्योंकि दिसंबर। I have got my telecaller just मैंने कुछ ही दिन पहले अपॉइंटमेंट किया है। नो प्रॉब्लम, तो उसको हम लोग यस यस, आप जो मैं पढ़ाऊंगा वो उनको आप पढ़ा लीजिए, बट एक्चुअल प्रोसेस जो है ना टेलीकॉलर का, वो हम लोग अप्रैल में इम्प्लीमेंट करेंगे, सो दैट यू कैन स्टार्ट दैट प्रोसेस। क्योंकि जब तक खुद नहीं करेंगे ना ये सब इम्प्लीमेंट, तब तक आप टेलीकॉलर को रख के उसमें रिजल्ट नहीं आता है। इसके लिए पहले खुद करना पड़ेगा। खुद जब करेंगे तभी उसका बहुत ज्यादा आपको ये रहेगा। तो हम लोग बहुत सारे टूल्स देंगे आपको, सो दैट इन दिस 3 months वी विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ ग्राउंड। तो 2 अक्टूबर को हम चालू करेंगे। शेड्यूल ऐसा है कि ऑलमोस्ट अभी ये हम लोग एक गैप दे रहे हैं, बट अदरवाइज एवरी सैटरडे 5 to 7 आप ब्लॉक कर दीजिए। एवरी सैटरडे 5 to 7। इनफैक्ट वी विल बी स्टार्टिंग लिटिल अर्ली, 4:30 4:45 को हम लोग चालू करेंगे। इन बिटवीन इंटरेक्शन होता है, एंड देन 5 o'clock शार्प विल स्टार्ट एंड 7 o'clock वी विल स्टॉप। तो आप आपका एवरी सैटरडे 5 to 7 ब्लॉक इन बिटवीन आप क्या बता रहे थे कि 40 मिनट्स का एक फॉलो अप या मास्टरमाइंड? हाँ, वो आपको क्या करना है, 2 सैटरडे के बीच में थर्सडे को आपका जो मास्टरमाइंड है ना, आफ्टर सम टाइम वी विल बी विद इन अ मंथ और सो वी विल क्रिएट योर मास्टरमाइंड ग्रुप। तो वो मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ आपको एवरी थर्सडे 40 मिनट्स का 8 डेवलपमेंट ऑफिसर्स मिलके मीटिंग करना है। अच्छा, तो ये वो बनाया जाएगा, टाइम भी फिक्स रहेगा? यस यस, टाइम फिक्स रहेगा, डे और टाइम फिक्स रहेगा। सब ग्रुप्स को वही टाइम पे और वही डे पे करना है। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, कोई हमारा साथ फॉलो अप नहीं करते। वी वांट डूइंग थिंग्स, हैव बीन आल्सो डूइंग, बट आई रियली समटाइम्स आई फील कि एक फॉलो अप कोच का जरूरत आज भी है। क्योंकि वी हैव गॉट अनदर 5 years टाइम आफ्टर आवर रिटायरमेंट, सो वी नीड ए फॉलो अप सिस्टम। नहीं, दैट यू विल गेट इन बिग मेजर, बिकॉज हम लोग, आपको क्या, मेरे को भी फॉलो अप की जरूरत लगती है। सो द सेम थिंग इज एवरीवेयर। मुझे, मेरा भी मेंटर है, मेरा भी कोच है, और मेरा भी फॉलो अप के लिए मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ता है। यस मिस्टर के प्रवीण कुमार, ध्रुव कुमार, देबाशीष, भानु प्रताप, एनी क्वेश्चंस, एनी? अच्छा, मतलब आज जो भी बातें हुई, कैसे, मतलब उससे क्या आपको क्या एक्सपीरियंस क्या हो रहा है? दिनेश कुमार, Shilpa, can you say something? Have you seen the video, Shilpa? What is your experience? Shilpa, are you there? Hello, hello. Okay, everybody has just, yeah, thank you, Ravishinde, thank you. So if you have, everybody has posted your number in the chat, then you know that if you are not posted still, please post it. So we can, Vivo 1234, please post your number. Ashish ji have already included me in the group. हाँ,
R3 is the group. R3, right. Yeah. So R3 will not be the actual group. Our actual group is RB3. So you'll have to, after making payments, I think. Once you register, no, then you will be put into the RB3 group. Okay. So actual batch is RB3. अभी हम लोग एक week मतलब within this before 2nd October, I want all of you to immediately register and start seeing the videos. So that before the session on 2nd October. Videos are on what, sir? Videos are on what subjects the videos are? The video is on same recruitment का पूरा process है उसमें. अच्छा, okay. पूरा process है. तो क्या होता है, instead of live class ना आपके पास वो recording रहेगा, तो क्या होता है जब आप market में जाएंगे, आप कुछ practice करके या कुछ implement करके आएंगे, तो then again you can see whether you did right or wrong. So that's why those videos are for lifelong. आपको access है उसमें. ठीक, okay. Yeah. And Shilpa, are you there? Shilpa, hello. Ashish, who are the people who have joined? Can you call them out for sharing their experience if they have seen the videos, especially those who have joined earlier? Hello, Ashish. Yeah, Jason has seen the videos. Yeah. Sarita has seen, but Sarita has not joined today. Then Shilpa, actually the name of the agency is in the name of Shilpa, but her husband attends normally, Sandeep Sarjane. Acha, Sandeep, okay. Sandeep must have seen the videos. He has seen. Shashank, have you seen the videos? Shashank Jain. Shashank. Lazarji, I'm just leaving. Yeah, okay. I will talk to Mr. Ashish. Yeah, sure. And tomorrow we'll have a talk. Yeah, sure. Okay. And Neelam will be your relationship manager. So she'll be generally in touch with all the things. We'll introduce her formally next session. So we'll meet on scene 3-4 videos, Dhruva. Okay, very good. Yeah. How did you find them, Dhruva? 3-4 videos, matlab one chapter. You must have seen one chapter. Yeah. Your second chapter is most important. So I want all of you to please immediately register. Those who have registered, please watch chapter number 1, 2, and 3. That's your assignment before October 2nd. Okay. Chapter number 1, 2, 3, which will be about 15 videos, and it will be about 10 minutes, so around 110 minutes ka, content. So you have to see the 3 chapters before you come on 2nd. Okay, fine. So then we will close the session and we can meet. I hope everybody has put their name and numbers. So thank you very much. We will see you on 2nd October. Okay, thank you very much. Yeah, we will close the session. For registration, Ravi, you have to contact Ashish. Have you put your number in the chat? Ashish will call you. Put आपका chat में number डाल दीजिए, तो Ashish will call. Okay, sir. Thank you, Rajesh. Chat में आप number डाल दीजिए. Ashish will call you. You want me to put my number? हाँ, just put your number na in the chat. That is also. Yeah. Ashish अपना number डाल रहा है, तो you can contact him. Please put your name and number in the chat, so we'll be able to contact you. Otherwise, Ashish has put his number 773857. So please, if you want to contact him. Neelam, can you just chat का जो recording का है ना, Neelam? हाँ sir, हाँ. वो chat में जरा मतलब whatever numbers, name numbers आते हैं, immediately make a list of that and send it to us. Yes sir. Yes, after recording completed, I will do that. Yeah, after the recording is completed. Okay, chalo, thank you very much. Goodbye. Good night. See you next Saturday. Ashish, you have to say anything? Bye everyone. No. Bye everyone. Thank you very much. Bye. Thanks. Okay, chalo. So all the best. Neelam, you can close the session.